coming to my topic in hand, today I'm going to be discussing the tax treatment of equity shares, futures, options, mutual funds when traded on a stock exchange, as well as commodity-related transactions. And I've also tried to deliberate on another area that of lately has become very relevant: cryptocurrencies. I mean, there's no precedent, but then. I have few interpretations which I would like to share. I mean, would like to know everyone's view. So without wasting any time, I'm coming directly to my topic in hand. So yeah, taxation of listed equity shares. See, हम सारे chartered accountants हैं, so I'll not be going into every stuff because again, we all understand what an equity share is, what a short-term capital gain is, what a long-term capital gain is. So I'll be in very brief deliberating upon all these areas. Before I do that, yeah. So taxation of, so a short-term capital asset held by assessee for not for so what is a short-term capital asset? Asset not held by assessee for more than 36 months. So any asset for 36 months or less is a short-term capital asset. But when it comes to listed equity shares, this 36 months gets replaced by 12 months, and in case of unlisted equity shares, it gets replaced by 24 months. So simple सा फंडा है listed securities के लिए, if they are held for a period less than or equal to 12 months, the period it will be a short term capital asset, and अगर वो 12 months से ज़्यादा होता है तो it's a long term capital asset. Long term capital asset से जो capital gain होगा will be a long term capital gain, और short term asset से जो हमारे को capital asset से जो gain होगा वो short term capital gain होगा. So we all know section 111 Section 111A, tax will be at the rate of 15%, capital gain on transfer of listed equity shares being short-term capital asset. So, and such transaction is chargeable to STT. So 111 है कि सबसे important condition है that must be transfer of a capital asset being short-term in nature, and security transaction tax must have been paid on that transaction. So अगर आप मान लीजिए ऑफ मार्केट बेचते हैं जाता तो आपके डीमेट से ही है, लेकिन वो उस पे एसटीटी पे नहीं की जाती, उस केस में वो एक नॉर्मल रेगुलर रूट में आ जाता है जो आपके प्रिवेलिंग स्लैब रेट में, या फिर अगर आप कंपनी है तो 30% या 25% या 22% एज भी जो भी आप पे एप्लीकेबल रेट है वो उस पे टैक्सेशन होगी. अगर आपको 115A का बेनिफिट 111A का बेनिफिट लेना है तो that transaction must be chargeable to security transaction tax, and that is only possible when that is sold on market. Now coming to the long term capital gain, as we all know कुछ टाइम पहले तक long term capital gain exempt था. मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में लूंगा because this is a new area. So as we all know long term capital gain कुछ टाइम पहले तक exempt था. Section 10 of subsection 38 exempted capital gain arising on long-term capital asset being listed equity shares or mutual funds. So first of all, this short-term capital, this amendment was brought in by Finance Act 2018. Hence, it is applicable for transactions on or after 1st April 2018. So any transaction that happened on or before 1st April 2018, it will continue to be governed by the erstwhile law. Assessment year 1920 यानी financial year 18-19 के बाद long term capital gain being on listed equity shares sold on stock market is also subject to taxation at 10% under section 112A. So capital gain इसकी कुछ conditions है. It is after 1st April 2018. Capital gain from transfer of listed equity shares being long term capital asset. Security transaction tax is paid on transfer of such share. बेचने पे at the time of transfer security transaction tax pay होना चाहिए. इसके अलावा there is another condition which says security transaction tax is also to be paid on acquisition of such share. अभी तक हम देखते थे कि पेमेंट के टाइम पे एट द टाइम ऑफ सेल एसटीटी पे होनी जरूरी थी, बट 112A कहता है कि एट द टाइम ऑफ परचेज भी
at the time of purchase भी STT should have been payable. That is, purchase of equity share should also be on stock market. ऐसी कुछ कंडीशंस पहले भी आई थी जो 112A में अडॉप्ट की गई हैं. इसकी कुछ एग्जेम्पशंस भी है which we shall be discussing later. ये सारी कंडीशन फुलफिल होती है. Capital gain is transferred after 1st April 2018. It is a capital asset is listed equity shares. STT is paid on sale and STT is also paid on acquisition. Then such long-term capital gain arising shall be chargeable to tax at the rate of 10% on amount exceeding 1 lakh. अगर आपको मान लीजिए 90,000 तक का क्या कहते हैं 90,000 तक का क्या कहते हैं कैपिटल गेन होगा, in that scenario no tax shall be payable. However, when it exceeds 1 lakh, tax at the rate of 10% shall be payable on amount exceeding 1 lakh rupees. नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं. नाउ अगेन अब जैसे ये प्रोविजन लाया गया तो बहुत जैसे ये प्रोविजन लाया गया तो आज तक जैसे 1/4/2018 से पहले तक का जितना गेन था मेरा वो एग्जेम्प्ट था. तो एक क्वेश्चन उठता है कि लेट्स से आई बॉट रिलायंस का शेयर, आई एम नॉट गोइंग इनटू द एक्चुअल फिगर्स, लेट्स से रिलायंस का शेयर एज ऑन 1/4/2018 वाज 1,000 rupees. When I bought it at 300 rupees in 2011. अब 300 रुपए से 1,000 रुपए तक का जो मेरा कैपिटल गेन था, अगर मैं उसको 1 अप्रैल 2018 से पहले बेचता यानी 31 मार्च को, तो मेरा कोई टैक्स ना दिया जाता. बट नाउ ऑन 1st April 2018 this transaction has been subject to tax at the rate of 10%. तो क्या एंटायर अमाउंट पे टैक्स होगा? क्या मुझे कुछ बेनिफिट मिलेगा? क्या मेरी कॉस्ट 300 ही रहेगी कि कुछ डिफरेंट होगी? इसके लिए they made amendments under section 48 and section 55 when they brought in to provide a grandfathering of capital gain that has already arose. As on the date this section was brought in. अब this section was brought in was 1 फरवरी 2018, मतलब बजट जिस दिन इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ग्रैंडफादरिंग जितनी भी हुई है फरवरी 2018 के पर्सपेक्टिव से हुई है. तो जितनी भी चीजें हम कॉस्टिंग एंड ऑल की देखेंगे जो कि मैं आगे बताऊंगा, वो 1 फरवरी 2018 और 31 जैन 2018 के पर्सपेक्टिव से देखी जाएगी. मैं अगेन बड़ा डिटेल में इसको समझाऊंगा. आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट कि एनी गेन दैट हैज ऑलरेडी अरोज बिफोर अप्रैल 2018 shall not be subject to tax because they have revised the cost of acquisition formula. Now how do I compute long term capital gain under section 112A? नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब हम क्या कहते हैं हमें कोई भी कैपिटल असेट पे मान लीजिए कैपिटल गेन होता है, माय फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट. अगर लॉन्ग टर्म होता था तो कॉस्ट ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होती थी, व्हिच इज माय फर्स्ट प्रोवाइजर टू सेक्शन 48. फर्स्ट प्रोवाइजर टू सेक्शन 48 मुझे इंडेक्सेशन करने का ऑप्शन देता है, और सेकंड प्रोवाइजर टू 48 डील करता है फॉरेन नॉन रेजिडेंट के केस में वेयर दे मेक इन्वेस्टमेंट्स यूजिंग फॉरेक्स. इफ एनी इन्वेस्टमेंट हैज बीन मेड यूजिंग फॉरेक्स, तो वो फॉरेक्स का जो एक्सचेंज डिफरेंस के अकॉर्डिंगली अगर उनको कोई गेन हो रहा है तो उस गेन को टैक्स ना करने के लिए दे ब्रॉट इन सेकंड प्रोवाइजर टू 48. ये हमारे एग्जिस्टिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन में लगता था. नाउ फर्स्ट थिंग, बेनिफिट ऑफ सेक्शन 1 benefit of first and second proviso to section 48 shall not be available. Where any long term capital gain is arising under section 112A, तो indexation नहीं होगा, और जो that is first proviso follow नहीं होगा, और second proviso to 48 which is applicable in case of investment using forex by non resident, वो भी applicable नहीं होगा. अब ये नहीं applicable होगा तो what will be applicable? Now what they have done is they have provided a very different kind of formula, I think, and this is a very हमने इसको काफी इम्प्लीमेंट करके देखा है, तो मुझे एक वर्किंग फॉर्मूला लगता है जिसमें मतलब मेजॉरिटी या मैक्सिमम केसों में कोई मुझे डबल टैक्सेशन या कोई अनड्यू टैक्सेशन होता हुआ नहीं नजर आया, क्योंकि अब हम इसको 2-3 साल से इम्प्लीमेंट कर चुके हैं. ये कहता है फॉर इक्विटी शेयर सब्सक्राइब बिफोर 1 फरवरी 2018. तो इसका मतलब 1 फरवरी 2018 क्या डेट थी? जिस दिन ऑनरेबल प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर हैड मेड द बजट स्पीच इन द पार्लियामेंट. तो उन्होंने कहा 1 फरवरी 2018 से पहले
अगर आपने कोई इक्विटी शेयर सब्सक्राइब किए थे या खरीदे थे, तो सबसे पहली बात ये, इसका क्या कहते हैं, इसका सबसे पहला इम्प्लीकेशन व्हेन इट सेज दिस कॉस्ट ऑफ फॉर्मूला इज एप्लीकेबल only for capital gain arising only for capital equity share purchase before 1st February 2018। तो इसका सबसे पहला इम्प्लीकेशन ये है कि 1 फरवरी 2018 से लेके 31 मार्च 2018 तक या उसके बाद अगर आप कोई भी शेयर खरीदते हैं, उसमें ये सेक्शन 55 का जो नया तरीका दिया गया है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने का, नहीं लगेगा। अब वो कहता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी हायर ऑफ 1 और 2। फर्स्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो सब जिस कॉस्ट पे आपने वो शेयर सब्सक्राइब किया था या परचेज किया था, दैट विल बिकम माय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। या लोअर ऑफ FMV as on 31 January 2018 and full value of consideration received or accruing as a result of transfer of capital asset। हम पहले देखेंगे कि मेरी FMV as on 31 मार्च 31 जनवरी 2018 क्या थी, what was my fair market value as on 31st January 2018। what is fair market value, इसमें मैं बट अज्यूम करके चल लीजिए उस 31 मार्च का प्राइस, एक मिनट के लिए मान के 31 जनवरी का प्राइस, I'll be telling the exact thing in another। तो 31 जनवरी को उसका प्राइस वर्सेस कंसिडरेशन दैट आई रिसीव्ड एट द ट्रांसफर, इन दोनों में जैसे जो कम होगा वर्सेस माय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी माय हायर ऑफ दिस टू विल बी माय वो। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने एक रिलायंस का शेयर मान लीजिए 2200, इस समय 2400 का चल रहा है, 2400 का मैंने बेचा आज की डेट में, तो मेरी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी है, 2400। ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, प्लीज डोंट माइंड माय हैंडराइटिंग, अगेन आई डोंट हैव अ राइटिंग पैड, बट होता भी तो भी ऐसी राइटिंग आती अगेन। तो सबसे पहले मान लीजिए मैंने ये शेयर खरीदा था 2008 में मैंने शेयर खरीदा, 2008 में मान लीजिए रिलायंस की वैल्यू 1000 रुपीज थी, and I purchased, it costed me 1000 rupees। और फिर फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन ये मैंने शेयर आज बेचा है, यानी 2021 में फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी मान लीजिए 1600 रुपए थी। और कॉस्ट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मेरी, क्योंकि मैंने बताया कि 2400 रुपए थी, तो ये 2400 आ गई। तो पहले मैं देखूंगा लोअर ऑफ 1600 और 2400, मेरी फेयर मार्केट वैल्यू आज 31 जनवरी, 1600 और 2400 का लोअर क्या है 1600, तो आई विल गो विद 1600 रुपीज। देन आई विल सी कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और यहां में जो लोअर आया यानी 1600 कौन सा हायर है, यानी 1600, तो 1600 विल बी माय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो जो 2400 का मैंने शेयर बेचा था उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 100 एंड बैलेंस 1800 विल बी माय टैक्सेबल अमाउंट। अब यही एग्जांपल ले लीजिए, मैंने शेयर 1200 का बेचा है, 1200 का बेचा है, तो ये यहाँ पे फिगर कितनी हो गई 1200। तो अब वो हायर ऑफ द टू, अब वो लोअर ऑफ द टू में 1200 को पिक करेगा और हायर ऑफ द टू में 1000 और 1200 यानी 1200 को। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन दूसरे केस में मेरी 1200 हो गई और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी 1200 हो गई, तो एक तरह से मेरा कैपिटल गेन 0 हो गया। By virtue of this thing, they have tried to grandfather my notional gain that arose to me। अब एक और एग्जांपल ले लीजिए, शेयर मैंने मान लीजिए अब बड़े सारे शेयर हैं जो बड़े गिर भी गए, अब सिंटेक्स जैसी कंपनियों का शेयर आज 1-1, 2-2 रुपए का घूम रहा है। मान लीजिए उस टाइम पे ये 100 रुपए का शेयर था जब मैंने खरीदा था, 31 जनवरी को ये शेयर मान लीजिए 300 रुपए का हो गया था, और आज जब मैं बेच रहा हूँ ये 1 रुपए का हो गया है, विच इज द केस, 1 रुपए का शेयर बिक रहा है। तो माई फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज ₹1 एंड माई 31 जनवरी की वैल्यू इज 300 और 1 रुपए की मेरी कंसिडरेशन है। तो लोअर ऑफ दीज टू दैट इज ₹1 एंड माई कॉस्ट वॉज 100 रुपीज। तो 100 रुपीज एंड 1 यानी मेरी कॉस्ट हो जाएगी 100 और सेल प्राइस 1, तो इस केस में मुझे 99 का लॉस भी आएगा। इस तरीके से मेरे नोशनल गेन को क्या कहते हैं
तो एग्जाम करता ही है, साथ में जो मुझे लॉस हुआ है वो भी मुझे देने की कोशिश करता है। बट देन अगेन यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा, इस केस में मुझे लॉस 300 रुपए का हुआ था, या मान लीजिए 100 रुपए की चीज 300 की हो गई थी, तो मेरे को उस समय शायद अगर मैं इसको 1 अप्रैल को बेचता तो मुझे ज्यादा का लॉस होता। बट यहाँ पे इसने मुझे इस तरीके से मेरी कॉस्ट से लॉस दिया, जो अगेन किसी और केस में शायद नहीं हो पाएगा। आई थिंक आई मेड माई पॉइंट इन एक्सप्लेनिंग द कॉस्ट मैकेनिज्म अंडर सेक्शन 55। किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले सकता है प्लीज। सर, आकाश जी, सौरभ जी। नहीं नहीं ठीक है जी। सिंपल सी बात यह है कि जो 31 जनवरी का रेट था वो वर्ष। अगर बाई चांस हायर था जी और सर। जो हमने माल बेचा वो कम पे बेचा, तो उसकी वजह से जो नोशनल लॉस हुआ हमें, उसका हमें कैपिटल लॉस नहीं मिलेगा। दैट इज द सिंपल थिंग ना। जी सर, क्योंकि वो हमने कभी रियलाइज ही नहीं किया था। यस यस यस, नोशनल लॉस हमें वो उसके वजह से लॉस नहीं देगा हमें वो। जी सर, वो हमें नहीं देगा। तो हाँ, व्हाट इज माय फेयर मार्केट वैल्यू? व्हाट इज माय फेयर मार्केट वैल्यू? फेयर मार्केट वैल्यू मींस अगर शेयर लिस्टेड है, हाईएस्ट प्राइस ऑफ सच इक्विटी शेयर एज ऑन 31 जनवरी 2018। आप सर बीएसई की एनएसई की दोनों की वेबसाइट पे जाएंगे। आप मान लीजिए रिलायंस की वेबसाइट पे हम जाते हैं, सॉरी हम जाते हैं एक जब भी आप बीएससी देखेंगे, एनएससी की वेबसाइट जो भी देखेंगे सर, मैं अगेन बीएससी एनएससी नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ जो भी, उसका रीजन है जो कि मैं अभी 2 मिनट बाद बताऊंगा। आप मान लीजिए जब एनएससी की वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको दिखाता है माय वेटेड एवरेज क्लोजिंग प्राइस, माय ओपन प्राइस, माय हाई प्राइस एंड माय लो प्राइस। तो हमें यहाँ पे हाई प्राइस निकालना है। मान लीजिए 1000 रुपए का शेयर बंद हुआ उस दिन, खुला 990 पे था, 1000 रुपए पे क्लोज हुआ, उसने हाई बनाई 1050 की और लो बनाई 980 रुपए की। तो इस केस में हम 1050 वैल्यू लेंगे, ना ओपन प्राइस, ना लो प्राइस, ना क्लोजिंग प्राइस। वी विल टेक दी हाईएस्ट प्राइस। ये आपको बीएससी की वेबसाइट पे, एनएससी की वेबसाइट पे बड़ा इजीली मिल जाएगा। अब सर वो कहता है कि लिस्टेड, if it was listed on any stock exchange, तो highest price of such equity as on 31 जनवरी। मेरे सारे शेयर या तो बीएससी पे रजिस्टर्ड है, जो भी मतलब मैं अगेन मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, कोई रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड हो तो अलग बात है। मेरे मेजर शेयर या तो बीएससी पे लिस्टेड है या एनएससी पे लिस्टेड है। तो अब क्या मुझे किसकी वेबसाइट पे जाके देखनी है, बीएससी की पे देखना है कि एनएससी पे? सर मुझे दोनों पे देखना है। मान लीजिए रिलायंस ने जब अपनी हाई बनाई थी, बीएससी पे बनाई थी 1050 रुपए 10 पैसे। बीएससी और एनएससी में एक बहुत टेक्निकल डिफरेंस होता है। बीएससी में आप पैसों में भी ट्रेड कर सकते हो, 0.1 0.2 इसमें भी ट्रेड कर सकते हो। एनएससी में 0.05 के मल्टीपल्स में ट्रेड होता है। तो हो सकता है एनएससी या बीएससी में 2 या 3 पैसे का या 4 पैसे का या 1 रुपए का ही फर्क हो। बड़े बड़े शेयरों में 1 आध रुपए का भी फर्क हो जाता है। जैसे नेस्ले का शेयर आज 20-22 हजार रुपए का शेयर है, तो इसमें तो 10-10 रुपए का भी फर्क आ जाता है बीएससी और एनएससी के प्राइस में। तो हमें बीएससी और एनएससी दोनों की वेबसाइट पे जाके देखना है और उसका हाईएस्ट प्राइस निकालना है। ये तो बड़ा कम्बरसम है। हाँ जी है, लेकिन सर इसकी बुक्स आ चुकी है। टैक्समैन हैज पब्लिश्ड अ बुक जिसमें उसने हर शेयर की, हर स्क्रिप्ट की जो कि उस समय ट्रेड करती थी, दे हैव गिवन द प्राइस, द हाईएस्ट प्राइस फ्रॉम बोथ द एक्सचेंजेस, एक टेबल में लिख के। ऑल यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू, आई मीन, look at alphabetically look at your share and you'll get to know the price। इसकी सॉफ्ट कॉपीज भी आ चुकी हैं, बहुत इजीली एक्सेसिबल है। अगेन सिंपली गूगल करके आपको वो हाईएस्ट प्राइस मिल जाएगा। बट देन अगेन इफ यू वांट टू डू इट योरसेल्फ, बीएससी एनएससी दोनों जगह जाइए और वहां का हाई प्राइस देखिए और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए। अगर अब शेयर मेरा 31 जनवरी 2018 को लिस्टेड नहीं था, not listed on 31 January but listed on date of transfer। एक सीन अगेन मैं इस पे बाद में आता हूँ, मेरा ये वाला क्लास छूट गया है, छोटा सा पॉइंट छूट गया मेरा। Where no trading happened on 31st March 2018, हो सकता है शेयर की ट्रेडिंग ना हुई हो 31 मार्च 2018 को, बैन पीरियड में हो या कुछ डिफॉल्ट कर रखे हो जिसमें शेयर पीरियड ट्रेडिंग रोक देती है, या कभी कभी सेबी कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग के रीजन से या किसी भी रीजन से शेयर ट्रेडिंग रोक देती है, स्टॉप कर देती है। तो उस केस में क्या करना है? फेयर मार्केट वैल्यू विल बी द हाईएस्ट प्राइस ऑफ सच शेयर ऑन अ डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग 31 2018 व्हेन सच एसेट वाज ट्रेडेड। 31 जनवरी को नहीं ट्रेड हुआ तो आखिरी बारी जब ट्रेड हुआ था उस समय का हाईएस्ट प्राइस देख लीजिएगा। तो अगर किसी शेयर में कोई ट्रेडिंग नहीं है 31 जनवरी 31, ये अगेन ये
31 जनवरी है, आई थिंक क्लेरिकल एरर हो गया यहाँ पे, 31 मार्च लिखा गया, 31 जनवरी 2018 को अगर कोई ट्रेडिंग नहीं है तो इमीडिएटली प्रोसीडिंग पीरियड में जाके आप देख लीजिएगा। अगेन नाउ इज इफ द शेयर, अब देखिए अब ऐसा भी हो सकता है कोई शेयर मेरे पास पड़े तो हैं लेकिन उस समय लिस्टेड नहीं थे बट अब लिस्ट हो गए हैं। मान लीजिए कोई शेयर 31 मार्च 2018 का 2018 31 जनवरी, सॉरी आई स्टैंड करेक्टेड, 31 जनवरी 2018 को सम शेयर वाज नॉट लिस्टेड, इट वाज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग लिस्टेड कह लो, या इट वाज एन अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड शेयर था वो, उसने बाद में लिस्टिंग कराई। जैसे जोमेटो है, जोमेटो के किसी के पास शेयर मान लीजिए 2016 में थे या 2014 में थे, तो वहां पे आप कैसे कॉस्ट निकालोगे? तो वो ये कहता है जो आपकी कॉस्टिंग है, whatever your cost is, उसको फाइनेंशियल ईयर 17-18 में इंडेक्सेशन कर लीजिए, वही आपकी कॉस्ट है। देखिए सर ये बड़े टेढ़े तरीके से लिखता है। ये तो सर एप्लीकेबल ही नहीं हुआ ना, जब अगर आपने कहा कि 31 जनवरी से बाद में जो पहले शेयर लिस्ट हो चुके थे उन्हीं पे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। नहीं सर, जोमेटो तो कितनी पहले की बनी हुई है, आज मैं जोमेटो का शेयर बेचता हूँ, जो कंपनी लिस्टेड ही नहीं है उसके ऊपर तो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा ना। नहीं है ना सर फॉर्मूला। आज मान लीजिए मेरे पास 2016 में या 2014 में मैंने जोमेटो का शेयर बाय मींस ऑफ ईसोप खरीदा, या मैंने प्राइवेट परचेज किया, या जैसे मर्जी परचेज किया, मैंने जोमेटो का शेयर खरीद लिया था 2014 में प्राइवेट प्लेसमेंट में, मैं इन्वेस्टर हूँ सर। आज मैं 2021 में जब एग्जिट मांग रहा हूँ तो क्या मेरी परचेज प्राइस माइनस सेल प्राइस सब में टैक्स लगा दोगे आप 112 में? नहीं सर, नहीं सर, ऐसे केस में आप मेरी पूरे अमाउंट पे टैक्स नहीं लगाओगे। ग्रैंड फादरिंग ऑफ गेन्स अप टू 31 जनवरी 2018 आपको मुझे तब भी देनी है। तो अगर मान लीजिए मैंने 2014 में 100 रुपए का 10 रुपए का शेयर मतलब पार भी सब्सक्राइब किया था मैंने, अब मैंने 2014 में जो 2017-18 का जो इंडेक्सेशन है, यानी मैं यहाँ 18 लिख देता हूँ, 18 डिवाइडेड बाय मैं 2014 का इंडेक्सेशन, सिंपल सा, मेरी शेयर प्राइस को 17-18 की इंडेक्स वैल्यू निकाल लीजिए। मान लीजिए मैं शेयर प्राइस अगर 17-18 में बेचता और मैं उस पर इंडेक्सेशन लगाता, नॉर्मल तरीके से चलता, तो मेरी जो वैल्यू आती वही मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है या फिर मेरी फेयर मार्केट वैल्यू। सर इसमें कोई डाउट है? सर ये थोड़ा ट्रिकी है इसलिए मैं फिर से पूछ रहा हूँ, इसमें कोई डाउट है? पारस जी, जैसे आपने एक एग्जांपल लिया जोमेटो का शेयर तो पहले लिस्टेड ही नहीं था, नहीं और उस दिन भी लिस्ट नहीं था, बाद में लिस्ट हो गया। जी सर। अब जैसे कुछ शेयर्स ऐसे भी होते हैं जो पहले लिस्टेड थे, मैंने लिस्टेड ही खरीदे, एसटीटी पे किया, बीच में डीलिस्ट हो जाते हैं, फिर दोबारा रीलिस्ट हो जाते हैं। जी। तो अगर 31/1 को वो डीलिस्टिंग में था तो मैं उसको नो ट्रेडिंग में नहीं मान सकता, नो ट्रेडिंग, नॉट लिस्टेड में ही मानूंगा। नो ट्रेड, हाँ शायद, है इसमें ऐसा क्लैरिफिकेशन? एक सेकंड दीजिए मुझे, तो बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जैसे रुचि सोया का शेयर हुआ था, एक बार डीलिस्ट हो गया था, बाद में रीलिस्ट हुआ था। सर आपने बहुत मोटा प्रॉफिट कमाया है सर, आपको 40% पे टैक्स मिलना चाहिए रुचि सोया पे। सर बेचने के बाद भागा है, क्या करें? अच्छा बेचने के बाद भागा है फिर तो सर ये कहता है ये दो केसेस देता है सर, नॉट लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बट लिस्टेड ऑन सच एक्सचेंज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। ये वर्ड जो यूज करता है नॉट लिस्टेड बट लिस्टेड ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, तो सर इसको डीलिस्ट वाले को आपको नॉट लिस्टेड में ही इंक्लूड, नॉट लिस्टेड में लेना, लिस्टेड में इंक्लूड नहीं करोगे। जी सर, अगर मान लीजिए रुचि सोया का एग्जांपल लेते हैं, रुचि सोया 2016 तक लिस्टेड, मैं जानता नहीं हूँ रुचि सोया के एग्जैक्ट केस, apart from the fact that it has been purchased by बाबा रामदेव जी, 2016 से लेके 2016 में मान लीजिए रुचि सोया डीलिस्ट हो गई और 2020 में वापस रीलिस्ट हो गई, और मैंने 2014 में शेयर खरीदा, तो 14 का जो मेरी वैल्यू है मैं यहाँ लिखूंगा, 14 मैं अपनी वैल्यू तो यहाँ लिखूंगा 14 की, 14 का इंडेक्सेशन का यहाँ लिखूंगा और 18 का इंडेक्सेशन का जो मेरा रेट है यहाँ लिखूंगा, तो जो मेरी इंडेक्स कॉस्ट आएगी वही मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाए, फेयर मार्केट वैल्यू बन जाएगी। सर कोई इसमें डाउट? ठीक है जी, कैन आई मूव अहेड? हाँ जी, हाँ जी। जी सर, मैं एक सेकंड सर, नाउ कमिंग टू माय नेक्स्ट स्लाइड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब
हमने पढ़ा था कि कुछ केसों में अगेन अक्विजिशन पे भी आपको कैपिटल गेन, अगेन मैंने आपको जब पहले ये पढ़ाया था तो मैंने एक ये चीज हाईलाइट करी थी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इज आल्सो पेड ऑन अक्विजिशन। अब सर हर केस में तो नहीं हो सकता अक्विजिशन में पेड, मान लीजिए वही जोमेटो का केस, शुरुआत में मैं प्राइवेट प्लेसमेंट में वो कहाँ से मुझे एसटीडी लगा के देगा, ये तो जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, तो इसमें मुझे क्या 112 का बेनिफिट नहीं मिलेगा? द आंसर इज नो। कुछ इसकी एक्सेप्शंस भी हैं, देयर आर सम एक्सेप्शंस एज वेल, एंड नाउ वी आर गोना डिस्कस द एक्सेप्शंस ऑफ आई मीन 112A। जी, सबसे पहली एक्सेप्शन तो सर इसकी ये है कि इफ लेट्स से द शेयर वाज अक्वायर्ड बिफोर 1 अक्टूबर 2004, 1 अक्टूबर 2004 से पहले अगर मैंने कोई भी शेयर अक्वायर किया है और उस पर एसटीटी नहीं लगी, वो वैसे ही इस दायरे में आता नहीं है। यहाँ पे चाहे लगे ना लगे, 1 अक्टूबर 2004 से पहले नहीं लगी। सर उसका रीजन क्या है? इसी दिन से एसटीटी आया गया था, अब इससे पहले तो लग ही नहीं सकती थी ना सर, चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, तो उससे पहले एसटीडी लग ही नहीं सकती थी। फिर कहता है कि शेयर्स अक्वायर्ड बिफोर, अगेन सर यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई, शायद यहाँ आफ्टर आना चाहिए था, यहाँ आफ्टर लिख लीजिए सर। ठीक है सर, आफ्टर है, हमने इसको सर्कल कर दिया। वो कहता है 2004, 1 अक्टूबर 2004 से पहले जितने भी शेयर थे उन पे एसटीटी लगे ना लगे वो 112A के दायरे में आएंगे, और 101 अक्टूबर 2000 बाद के भी जितने शेयर हैं जिन पे एसटीटी नहीं लगी वो भी 112A के दर्जे में आएंगे, एक्सेप्ट इन फॉलोइंग केसेस। अगर आपकी कोई प्रेफरेंशियल इशू हुआ है ऑफ शेयर्स विच आर नॉट फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड की डेफिनेशन है कि 10% ऑफ उसकी वॉल्यूम और एनुअल मार्केट 10% ऑफ वॉल्यूम और मार्केट कैप का कुछ रिलेशन बताया गया कि अगर वो उससे नीचे होती है तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड अ फ्रीक्वेंटली। सर देखिए ये क्यों किया गया था, क्योंकि बोगस एलटीसीजी के केसेस इतने बढ़ गए थे कि लोग पहले ऑफ मार्केट खरीदा करते थे, बैक डेट में परचेज दिखा दी, ये दिखा दी, वो दिखा दी, और वो शेयर मान लीजिए आज 500 रुपए का है मार्केट में, तो उसको क्या कहते हैं आज बैक डेट में किसी के थ्रू परचेज कर लेते थे, डीमेट कराते थे, क्योंकि उस समय डीमेटीरियलाइजेशन कंपलसरी थी नहीं ट्रांसफर करने के लिए, सब कुछ कर आके मैन्युपुलेट करके एक बोगस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक कर लेते थे, जो हम 1038 के केस में हम सब डील कर रहे हैं। आई एम श्योर आपके क्लाइंटों के केस में आपने पढ़े होंगे या सुने होंगे, एटलीस्ट केस लॉस तो जरूर सुने ही होंगे इसके बारे में। तो इस पर्पस को ये एक टैक्स इवेजन मैकेनिज्म बन रहा था, तो सरकार ने कहा कि देखो साहब अगर आपने 112A का बेनिफिट लेना है तो परचेज के टाइम पे भी एसटीटी होनी चाहिए, बट कुछ मैं एक्सेप्शन देती हूँ, और उसमें फिर उसने एक्सेप्शन सब कुछ दे दिया, हर चीज में 112A नहीं लग जाएगा एक्सेप्ट इन केसों में। अब ये सर देखिए नेगेटिव क्लॉज में एक दूसरा नेगेटिव आया, ओके सर मैं वेट कर रहा हूँ आपके फोन की, कर लेना बात। एक नेगेटिव क्लॉज में दूसरा नेगेटिव आया, पहले बोला कि इस पे नॉट कंपल्सरी, और फिर इसमें एक और नेगेटिव आया, इसका मतलब यहाँ पे 112A अगर मान लीजिए क्या कहते हैं कंप्लायंस इसकी पूरी नहीं होती तो 112A का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक्विजिशन थ्रू प्रेफरेंशियल, आपने प्रेफरेंशियल इशू करवाया ऑफ अ शेयर्स व्हिच आर नॉट फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड, प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर्स व्हिच आर नॉट फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड। मान लीजिए कोई बहुत सारी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होती है, कंपनियां करती हैं 1000 रुपए पे, 10 रुपए पे, 100 रुपए पे, शेयर का प्राइस कुछ भी हो सकता है। अगर वो कंपनी एक्टिवली ट्रेडेड नहीं है और वो प्रेफरेंशियल इशू में जाती है तो वहां 112A का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, कोर्ट मॉनिटर्ड, आरबीआई, एनसीएलटी, सेबी, या कोई नॉन रेजिडेंट एफडीआई रूट में आता है तो वो एग्जाम्प्ट है। अब सर एक और चीज समझिएगा, मैंने यहाँ एक नेगेटिव या दूसरा नेगेटिव, ये भी तीसरा नेगेटिव आ गया। कहते हैं आप लिस्टेड शेयर्स अगर ऑफ मार्केट एक्वायर करते हो तो उसपे भी आपको 112A का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक दो नेगेटिव चल रहे थे और अभी मैं एक और नेगेटिव दे दिया, तीसरा नेगेटिव, लेकिन इन केसों में आपको मिल जाएगा। तो 3 नेगेटिव, कितना कंफ्यूज करने का तरीका दिया गया है। आप सीधा सीधा लिख दीजिए कि साहब
इसमें मिलेगा, इसमें नहीं निकलेगा। लेकिन पहले इन्होंने एक नेगेटिव क्लॉज बनाया, फिर उसके अंदर एक नेगेटिव एक्सेप्शन बनाई, और उस नेगेटिव एक्सेप्शन के अंदर एक और एक्सेप्शन बनाई, 3 नेगेटिव डाले। मोटा मोटा बात करूंगा, इसमें नहीं मिलेगा। कोई भी ऑफ मार्केट लिस्टेड शेयर खरीदोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन इस तीसरे नेगेटिव के अंदर आ जाओगे, फॉल कर जाओगे, तो मिल जाएगा 112A का बेनिफिट। सर इज एवरीबडी विद मी? बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा ना हो कि मैं बोल दूं मिल रहा हूं और आप सोच रहे हो नहीं मिल रहा हूं, बेनिफिट और नहीं मिल रहा हूं, आप सोच रहे हो और मैं बोल रहा हूं मिल रहा हूं। इज एवरीबडी विद मी? पारस जी, इसमें एक बात बताएं, जैसे यस बैंक का शेयर था, जब यस बैंक डूब रहा था तो गवर्नमेंट ने अदर बैंक से सब्सक्राइब कराया। जी सर। तो स्टेट बैंक ने, HDFC, ICICI सारे बैंकों ने सब्सक्राइब किया, तो वो ये सेकंड वाले आपके एक्सेप्शन वाले एक्सेप्शन लिम में आ जाएगा ना, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट के ऑर्डर के थ्रू उस बैंक को बचाने के लिए कराया गया। ड्यूरिंग देयर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ना सर, वो प्रेफरेंशियल इशू कराया था ना इनको। हाँ जी सर प्रेफरेंशियल इशू तो वैसे ही अलाउड है ना, क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर में आ जाता है। वो तो पहले क्लॉज में अलाउ हो गया ना, दूसरे क्लॉज में स्पेसिफिकली भी अलाउ किया हुआ है, वैसे वो पहले क्लॉज में भी अलाउ हो गया। जितने बड़े शेयर है जिनकी वॉल्यूम 10% ऑफ मार्केट कैप जितनी है, उनमें तो लगता ही नहीं है सर। अच्छा, तो ऊपर ही कवर हो जाते हैं। आप ऊपर वाले में छोड़ के तो नीचे आने की जरूरत ही नहीं है। बाकी नीचे कुछ स्पेसिफिक क्लॉजेज है। अगर आरबीआई, एनसीएलटी या सेबी या किसी कोर्ट के अप्रूवल से शेयर इशू किए गए हैं, तो चाहे एसटीटी लगे ना लगे 112 का बेनिफिट मिलेगा। बैंक्स, रिकंस्ट्रक्शन, सिक्योरिटाइजेशन कंपनीज और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ड्यूरिंग देयर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कोई शेयर्स अक्वायर करती हैं, तो एसटीटी लगे ना लगे उसका बेनिफिट मिलेगा। अब सर अभी तक तो मैंने आपको 3 नेगेटिव दिखाए थे, अब ये चौथा नेगेटिव आ गया। नेगेटिव में नेगेटिव आ गया। नहीं सॉरी मैं आई स्टैंड मिस्टेकन। ये ऑलरेडी इंक्लूडेड था। ईसॉप्स अगर आपने सब्सक्राइब किए तो ईसॉप सब्सक्राइब करते हुए कोई वो नहीं लगता, क्या नाम है, एसटीटी नहीं लगता, तो आपको बेनिफिट मिलेगा 112A का। कोई नॉन रेजिडेंट एफडीआई रूट में सब्सक्राइब करता है तो वहां पे भी मिलेगा। बैंक्स, रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज ड्यूरिंग देयर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, आई थिंक ये रिपीटिशन हो गया पॉइंट का। अगर सेबी एक्विजिशन एंड सेबी सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर रेगुलेशन के तहत कोई शेयर्स एक्वायर किए गए हैं ऑफ मार्केट, तो भी आपको मिलेगा। गवर्नमेंट अगर एक्वायर करती है तो भी आपको मिलेगा। ट्रांसफर्ड अंडर 47, 50B, 45(3) एंड 45(4। सर 47 वो है जो आप कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे आप, जैसे हमारा नॉट बी कंसिडर्ड एज ट्रांसफर इफ लेट्स से एन एलएलपी कन्वर्ट्स इनटू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो जो शेयर्स आपके एलएलपी से कम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जाते हैं, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड अ ट्रांसफर। तो अगर ऐसे किसी तरीके से न्यू पर्सन ने एक्वायर करे हैं तो वहां भी मिल जाएगा। 50B आई थिंक इज लंप सेल, 45(3) एंड 45(4 स्किप्ड आउट ऑफ माय माइंड। एक सेकंड होल्ड कीजिए। पारस जी, राइट इशू पे लागू नहीं होता? सर राइट इशू पे तो मिल ही रहा है ना। राइट इशू प्रेफरेंस उस ऊपर ही आ गया है ना कि सर अगर एक्टिवली ट्रेडेड कंपनी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अच्छा, एक्टिवली ट्रेडेड, सर आप एक्टिवली ट्रेडेड कंपनी में जो मर्जी कीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 45(3) कहता है प्रॉफिट गेन्स अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय अ फर्म पार्टनर। अगर किसी इंडिविजुअल ने अपनी फर्म में कंट्रीब्यूट करते हैं तो 45(3) लगता है, तो उस केस में आपको 112 का बेनिफिट तब भी मिल जाएगा चाहे इंडिविजुअल ने। अब इसमें सर ये देखा जाता है कि उस पीछे वाले इंडिविजुअल ने 47, 50B, 45(3) और 45(4). 45(4) सर ट्रांसफर बाय वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट बाय फर्म। फर्म जब अपने पार्टनर को दे रही है, ये पार्टनरशिप और इंडिविजुअल वाले केसेस है। इन केसों में हम ये नहीं देख रहे, इन केसों में आपको सिंप्लिसिटर बेनिफिट तो मिल रहा है, लेकिन पीछे वाले आदमी का भी स्टेटस देखना है। अगर पीछे वाले आदमी ने भी कोई एक्सेप्शन क्लॉज में अक्वायर किया होगा तभी मिलेगा। ये नहीं कि पीछे वाले आदमी ने एक नॉन फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड कंपनी का प्रेफरेंशियल इशू ले लिया तो भी आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वे में बनाया गया है, तो थोड़ा सा क्या कहते हैं, इसको वैसे ही पढ़ना पड़ता है। इसके अलावा सर ड्यूरिंग डीलिस्टिंग ऑफ कंपनी, अगर जैसे सर कह रहे थे कि रुचि सोया डीलिस्ट हो गई थी जी, डीलिस्ट हो गई थी, तो डीलिस्ट के ड्यूरेशन में अगर मान लीजिए आपने
अक्वायर करे थे तो भी आपको 112A का बेनिफिट मिल जाएगा। ये सम एंड सब्सटेंस है सर। कैन आई गो अहेड? अब सर वो कहता है कि मान लीजिए 112A की सारी कंडीशन फुलफिल करते हो आप, तो आप 10% पे टैक्स होगे और आपका पूरा कैपिटल गेन ग्रैंडफादर हो जाएगा। मोटा मोटा बोलता हूँ, अगर आप 112A की कंडीशन फुलफिल नहीं करते, यानी आप ऑफ मार्केट सेल करते हो, तो या आप दो तरीकों से देख सकते हो, या तो 20% विद इंडेक्सेशन या 10% विदाउट इंडेक्सेशन। सिंपल सा। आप के पास दो तरीके हैं कैलकुलेशन करने के लिए। आपका जोन सा बेनिफिशियल है आप वो लीजिए। आप नॉर्मल शेयर एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जैसे बेचते हैं वैसे कैपिटल गेन निकालिए, प्रॉपर इंडेक्सेशन दीजिए, जो आपको गेन आता है उसको कंपेयर कीजिएगा विदाउट इंडेक्सेशन गेन से एट द रेट ऑफ 10%। तो जोन सा बेनिफिशियल है आप वो वाला ले लीजिए। इसमें कोई आई थिंक ये तो सब हम करते ही आ रहे हैं। आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट होगा। कैन आई गो अहेड सर? क्योंकि मेरा ये वाला टॉपिक खत्म हो गया, मैं स्पेसिफिक केसों में आ रहा हूँ। सर आई वेट फॉर योर अप्रूवल। आकाश जी, सौरभ जी। हाँ जी सर, प्लीज सर, प्लीज गो अहेड। अब सर अगर आपने राइट इशू अक्वायर किया तो जो अमाउंट आपने एक्चुअली पे किया विल बी माय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यहाँ कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं जहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अमाउंट पेड बाय मी विल बी माय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बोनस के केसों में माय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी निल। अगर मैंने राइट शेयर अंडर रेनंसिएशन सब्सक्राइब किया, मुझे राइट मिलता है और मैं राइट रिनाउंस करता हूँ, करने के लिए मैं 10 रुपए ले रहा हूँ, तो पार्टी ने मुझसे शेयर खरीदे वो 10 रुपए तो मुझे पहले देगा, के बाद शेयर सब्सक्राइब करेगा और कंपनी को मान लीजिए 50 रुपए देगा, तो ये 10 + 50 विल बी हिज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सिर्फ मैं खुद सब्सक्राइब करता तो मेरे को 50 रुपए मेरी कॉस्ट होती, लेकिन मैंने राइट अनाउंस कर दिया तो मुझे 10 रुपए मिले और सामने वाली पार्टी को 10 रुपए देने पड़े। सामने वाली पार्टी जिसने 10 रुपए दिए उसने 50 रुपए कंपनी को फिर सब्सक्राइब करने के लिए, तो उसकी कॉस्ट 60 होगी। और जो मैंने राइट अनाउंस किया, जो 10 रुपए मुझे मिले विल बी माय कैपिटल गेन्स और इसमें मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी निल। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहा हूँ। कुछ आई थिंक अब डीमटेरियलाइजेशन के बाद एक बहुत बड़ा इशू आता है कि मेरी पीरियड ऑफ होल्डिंग और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकलेगी। देखिए किस बेसिस पे मैं इसको लेके चलूंगा, तो इस पे आई थिंक 45(2)(a) इज वेरी क्लियर दैट इन केस ऑफ डीमटेरियलाइज्ड शेयर्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग इज टू बी डिटरमिन्ड ऑन फीफो बेसिस। तो जो आपके डीमैट अकाउंट में पहले आए वो बाद में वो पहले जाएंगे, जो पहले आए वो पहले जाएंगे। और अगर आपके मल्टीपल अकाउंट्स हैं तो आपको फीफो अकाउंट वाइज लगाना है। अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा। साहब मैंने रिलायंस के जब भी धीरू भाई अंबानी साहब ने कंपनी बनाई होगी तो 10 रुपए का शेयर इशू किया था, मैंने वो तब खरीदा था। आज 2400 रुपए का हो गया। मुझे पता है स्टॉक स्प्लिट हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो आज वो 10 रुपए की वैल्यू भी आई एम श्योर 50 रुपए 1 रुपए होगी, बट सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं मैंने 10 रुपए का रिलायंस सब्सक्राइब किया था एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आज 2400 रुपए का रिलायंस हो गया और मैंने 2400 के रिलायंस और खरीद लिए। आज मैं जो भी शेयर खरीदूंगा मैं अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू ही खरीद सकता हूँ लिस्टेड कंपनी के। तो जैसे ही मैं 2400 के शेयर खरीदूंगा सबसे मेरे डीमैट अकाउंट में 2400 के रिलायंस आ जाएंगे मेरे पास। जब मैंने धीरू भाई अंबानी साहब ने जब कंपनी फ्लोट करी थी तो मैंने ऑफ मार्केट यानी ऑफ मतलब तब डीमटेरियलाइजेशन कॉन्सेप्ट नहीं था, तो मुझे शेयर सर्टिफिकेट मिला था जिसमें मैंने 10 रुपए का शेयर सर्टिफिकेट था, वो मेरे पास आज भी पड़ा है। मैं आज उसको भी शेयर को क्या कहते हैं अपने डीमटेरियलाइज कराने चाहता हूँ। तो अब वो 10 रुपए का शेयर भी डीमटेरियलाइज हो गया। देखिए मैंने 2400 का शेयर खरीदा, उससे कितने साल पहले का मेरे पास एक शेयर सर्टिफिकेट था जो 10 रुपए का था, और वो जब मैंने डीमटेरियलाइज क्यों लेकिन 2400 के शेयर खरीदने के बाद कराया तो वो 2400 के बाद आएगा डीमेट में मेरी एंट्री। मैं बेचूंगा तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये कहता है जो मेरे डीमेट में पहले आया वो मेरे डीमेट से पहले माना जाएगा, मेरे 2400 के शेयर को मेरा शेयर माना जाएगा। मान लीजिए मैंने आज खरीद के 15 दिन बाद बेच दिया, यानी 1 अप्रैल को मैंने खरीदा। अब मैं एग्जांपल लेके बात करता हूँ। 200 का शेयर मैंने 1 अप्रैल 2021 में खरीदा। 3 अप्रैल को मैं डीमटेरियलाइजेशन कराने गया। कुछ ऐसे शेयर जो मैंने 1970 में खरीदे थे, 3 अप्रैल को वो डीमटेरियलाइज भी हो गए।
और मैंने 15 अप्रैल को शेयर्स बेच दिए, तो पहले ये माना जाएगा जो मैंने 1 अप्रैल 2018 को मेरे डीमेट में एंट्री करी थी 2400 का शेयर हो गया है, और जो 1970 वाले जो शेयर थे वो बाद में माने जाएंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आपके हैंड में नहीं देखना, आपके डीमेट के अंदर देखना है, जो डीमेट अकाउंट में आया वो पहले जाएगा। अब क्योंकि ये अकाउंट वाइज चलता है, तो अगर आपके 4 डीमेट अकाउंट है तो इसको आप 4 डीमेट अकाउंट पे अलग अलग लगाओगे। मान लीजिए आपका मोतीलाल ओसवाल में अकाउंट है, कोटक में एक अकाउंट है, और मान लीजिए एक आपका एसएमजी में अकाउंट है, और आपके पास रिलायंस के शेयर तीनों खातों में पड़े हैं, और सबसे पहले आपने मोतीलाल ओसवाल में खरीदे, फिर आपने कोटक में खरीदे, और सबसे एंड में आपने एसएमसी में खरीदे। और जब आप अगर आप एसएमजी से बेचते हो तो इट विल बी आपको फीफो एसएमसी में लगाना पड़ेगा, मोतीलाल ओसवाल और कोटक के खातों को बिल्कुल टच भी नहीं किया जाएगा। तो फीफो हैज टू बी अप्लाइड अकाउंट वाइज। देखिए ये एक गलती काफी लोग करते हैं, लोग फीफो लगाते हैं, लेकिन क्या करते हैं आगे हम जब अकाउंटिंग करते हैं शेयर्स की, तो हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो हम अकाउंट वाइज जो हम अपनी इन्वेंट्री बनाते हैं, हम उसका एक ही इन्वेंट्री हेड खोल देते हैं। नहीं सर, हमें जितने डीमेट है उतने इन्वेंट्री हेड खोलने पड़ेंगे। जितने कोटक मैंने, मान लीजिए कोटक मैंने खरीदा, कोटक मैंने मान लीजिए अगर वहां पे खरीदा मोतीलाल ओसवाल, सॉरी मैं रिलायंस अगर मैंने मोतीलाल ओसवाल में खरीदा, तो मुझे उसका एक अलग लेजर बनाना पड़ेगा। मैंने रिलायंस अगर क्या कहते हैं कोटक महिंद्रा में खरीदा, तो मुझे उसका अलग लेजर बनाना पड़ेगा। और रिलायंस मैंने एसएमसी में खरीदा, तो मेरे को रिलायंस का एक और लेजर अलग बनाना पड़ेगा। इन्वेंट्री और लेजर इनके आपको मल्टीपल डीमेट वाइज करने पड़ेंगे, अकाउंट वाइज करने पड़ेंगे। आप एक कोटक, आप एक रिलायंस का खाता नहीं खोल सकते जिसमें आप कोटक के महिंद्रा, कोटक सिक्योरिटीज वाले, मोतीलाल ओसवाल, एसएमसी वाले सारे एक ही में डाल दें। क्या सब मेरे साथ हैं? आई मीन इज दिस, आई एम श्योर, क्या इस पे कोई डाउट है सर? जैसा आप कहें। ठीक है सर, आपने बोल दिया, बस बात खत्म। इसके बाद सर हम जब 48 में, सेक्शन 48 में जब कैपिटल गेन निकालते हैं तो मुझे कॉस्ट डिडक्ट करना अलाउड होता है। 7th प्रोवाइजो टू 48 कहता है कि एसटीटी विल नॉट बी अलाउड एज अ डिडक्शन। एसटीटी जो आप शेयर पे बेचते वक्त देते हैं विल नॉट बी अलाउड एज अ डिडक्शन। सर इसका क्या लॉजिक है, क्या नहीं है, ये आज तक किसी को समझ में नहीं आया। काफी हैवी अमाउंट होता है, एंड वो इट रिमेन्स मतलब अगेन इट इज नॉट अलाउड एज एन एक्सपेंडिचर, बट जैसा लॉ में लिखा है वैसा है तो है। कॉस्ट व्हाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट, सर जब हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं ना सर, नहीं 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 एसटीडी पेड ना तो कॉस्टिंग का पार्ट है ना सेल का। नहीं सर, डिडक्शन अलाउ नहीं होगी उसकी। ओनली कमीशन ब्रोकरेज, जो ब्रोकर कमीशन, ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी चार्ज, और भी कई सारे टैक्स लगते हैं, ट्रांजैक्शन स्टैम्प चार्ज, ये चार्ज बोल, जितने चार्ज होंगे सर उसको छोड़ के उन सबको अलाउ होगा। एसटीटी का, एसटीटी से आई थिंक कुछ अलग सी प्रॉब्लम है यहाँ पे। ब्रोकर जो है जैसे सेक्शन 37 में बिजनेस एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट टैक्सेशन अलाउड नहीं होता ना, ऐसी वो इस टैक्स को भी अलाउ नहीं। सौरभ जी मैं यहाँ पे आपको एक और चीज हाईलाइट करना चाहूंगा। अगर मेरी शेयर ट्रेडिंग इस टैक्सेबल अंडर दी हेड पीजीबीपी, मैं अभी उस पर भी बताऊंगा कब पीजीबीपी और कैपिटल गेन के मैं जब वो केसेस बताऊंगा तब वो आगे मैं आगे बताऊंगा कि शेयर कैन आल्सो बी टैक्स एज योर बिजनेस इनकम। तो वहां पे 36(1) सबसेक्शन 3 में कहता है जो एसटीटी दिया उसका भी खर्चा ले लेना। उधर अलाउड। अगर आप बिजनेस में इसको टैक्स करते हो तो एसटीटी का खर्चा मिल जाता है, और लिख के मिलता है, ये भी नहीं कि साइलेंट है, स्पेसिफिक तो लिख के कहता है नहीं मिलेगा। क्या पॉलिसी है, क्या नहीं है, क्या चीज है, वो आई एम श्योर। ये जो ब्रोकर्स जो स्टेटमेंट देते हैं जिसमें वो ऑटोमेटिक कैपिटल गेन निकाल के देते हैं, तो दे कंसीडर दिस पॉइंट ना। कुछ ब्रोकर की ठीक है सर, कुछ की गड़बड़ आती है सर देखो सर, जो मेन आपके क्लाइंट जो प्रॉपर अकाउंटिंग कर रहे हैं वहां तो हम स्पेसिफिकली अभी अगेन मैं आपको बताऊंगा, एसटीटी आपकी एफ&ओ पे, फ्यूचर ऑप्शन पे भी लगती है, इंट्राडे ट्रेड पे भी लगती है, और इंट्राडे ट्रेड पे भी हर जगह लगती है, और डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन पे भी लगती है। ठीक है ना जी। अब एक आदमी जिसका काम ही स्टॉक ब्रोकिंग का है, उसको इंट्राडे पे आप एसटीटी अलाउ करते हो, उसको आप एफ&ओ पे एसटीटी अलाउ करते हो, लेकिन उसको आप डिलीवरी ट्रेड पे एसटीटी नहीं अलाउ करोगे, उसको आप पीजीपीपी में भी अलाउ करते हो। तो वहां पे हम 4 एसटीटी के खाते बनाते हैं। हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं तो हम डिलीवरी एसटीटी अलग बनाते हैं, इंट्राडे एसटीटी अलग बनाते हैं, पीजीपीपी में अगर उसकी स्टॉक इन ट्रेड जो दिखा रखा है उनकी एसटीटी अलग बनाते हैं, और फ्यूचर ऑप्शन की एसटीटी अलग बनाते हैं।
हम 3 STT अलाउ करते हैं एज बिजनेस एक्सपेंडिचर, और एक STT हम सीधा उसके क्या कहते हैं उसकी डिसअलाउ करते हैं, इट इज नॉट अलाउड एज एन एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसकी टैक्सेशन उसमें जा रही है। बड़ा कम्बरसम हो जाता है सर। और जहां तक ब्रोकर की बात है, जैसे सौरभ जी ने कहा, हाँ हाँ, कुछ ब्रोकर सही भी देते हैं, कुछ ब्रोकर गलत भी देते हैं। तो अगेन मैं जो ब्रोकर यूज कर रहा हूँ, जैसे कोटक और SMC 2 यूज कर रहा हूँ मैं जो पर्सनली, उन्होंने स्पेसिफिकली ये मेरी परचेज प्राइस, ये मेरा सेल प्राइस, ये मेरा गेन, STT मैंने इतना चार्ज किया इस ट्रांजैक्शन पे, वो अलग से निकाल के दिखा देता है। बट देन अगेन सर, ब्रोकरों की कमी नहीं है और उन सबके अपने अपने सॉफ्टवेयर हैं, तो आई एम श्योर आपको एक सैंपल बेसिस पे चेक करना पड़ेगा कि आपका ब्रोकर सही दे रहा है कि नहीं दे रहा। अब इसके बाद एक बहुत बड़ा डाउट आता है, हर कोई कहता है कि मान लीजिए जो भी हम शेयर खरीदते हैं, आई परचेज इट टुडे, उसकी सेटलमेंट 2 दिन बाद होती है, जिसको हम T+2 कहते हैं। 1 अप्रैल 2021 को जो भी शेयर खरीदे गए उसकी सेटलमेंट होगी 3 अप्रैल 2021 को। तो मेरी अकाउंटिंग 1 अप्रैल को होगी कि 3 अप्रैल को होगी, या मेरी टैक्सेशन 1 अप्रैल को होगी कि 3 अप्रैल को होगी? अब सर, कल रात तक मुझे लगता था कि ट्रेड डेट और सेटलमेंट डेट में से आप जो भी यूज करोगे उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहो, आप कर सकते हो। आप ट्रेड डेट फॉलो करना चाहते हो, ट्रेड डेट फॉलो कर लो, सेटलमेंट डेट फॉलो करना चाहते हो, सेटलमेंट डेट फॉलो कर लो, और इसमें जूरिस्प्रूडेंस भी है। लेकिन कल रात मुझे एक नया सर्कुलर मिला जो कि मेरे लिए भी एक नई चीज थी, जो कहते हैं डेट ऑफ ब्रोकर नोट। जो ब्रोकर की नोट पे डेट लिखी होती है वो लिखा जाएगा। अब मैंने ब्रोकर के नोट की डेट निकाली, मैंने अपने मतलब मैंने एक नहीं कम से कम 5-7 अलग अलग अकाउंट्स के क्या कहते हैं ब्रोकर नोट खोले, मतलब अपने क्लाइंटों के अपने सबके खोल के देखे मैंने। तो उस पर ट्रेड डेट सेटलमेंट डेट दोनों लिखा रहता है, लेकिन डेट ऑफ ब्रोकर नोट से मुझे लगता है जिस दिन ब्रोकर नोट का कॉन्ट्रैक्ट नोट बना है वो ट्रेड डेट होता है। तो एज पर दिस सर्कुलर ऑफ 1995, ट्रेड डेट को आपको कैपिटल गेन निकालना है और कंप्यूटेशन करनी है सारी चीजें। बट सर मैं एक चीज और हाईलाइट करना चाहूंगा, 80 से 90% ब्रोकर सेटलमेंट डेट पे करते हैं, उनके प्रॉफिट एंड लॉस सेटलमेंट डेट पे बनते हैं, उनकी कैपिटल गेन सेटलमेंट डेट के हिसाब से बनती है। तो हाँ, ये एक कैच मुझे कल मिला है। और ये हम अभी तक इसको यही भी मानते थे कि ट्रेड डेट या सेटलमेंट डेट विच एवर यू आर रेगुलरली एम्प्लॉइंग, आप उसको करते रहिए। लेकिन हाँ, ये कैच मुझे कल रात को ही मिला है व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस वेबिनार। तो सर आप ट्रेड डेट अलॉट कर लीजिए, अगर किसी का ऐसे चल रहा, अगर किसी का स्टार्ट करना है तो आई थिंक दैट विल बी बेटर। और जिसके में सेटलमेंट डेट चल रही है वहां भी चलने दीजिए, क्योंकि उस पर भी जूरिस्प्रूडेंस है, और लड़ना पड़ा तो ये कह देंगे कि ब्रोकर नोट पे दोनों डेट्स लिखी है। अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या जो मैं शेयर खरीदता बेचता हूँ, the shares that I trade, the shares that I am regularly trading, is it my business income or is it my income under the head capital gain? पहले सर 1038 में 10% 10% क्या कहते हैं 1038 में पहले कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट था, अब आया भी है तो 10% टैक्स पे आया है, और पुराना कैपिटल गेन पे मुझे ग्रैंडफादरिंग मिल गई है। उसके अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मेरा 15% पे टैक्स होता है। लेकिन जो PGBP में मेरी इनकम होती है इट इज टैक्सेबल है 30%। तो जब मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखाता हूँ या 10% पे टैक्स करके भेजता हूँ, तो एओ कहता है कि नहीं साहब, ये तो यू आर डूइंग दिस शेयर ट्रेडिंग एज एन एक्टिविटी विच इज एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। दिस इज नॉट मेयर इन्वेस्टमेंट, दिस इज नॉट मेयर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दिस इज एन एक्टिव ट्रेडिंग एक्टिविटी। तो वो मेरा 30% पे कर देते, तो जहां 1038 पे कुछ टैक्स नहीं लगता था वो 30% लगा देता था, जहां पे 15% का टैक्स लगना होता था वो वहां पे 30% लगा देता था, और अब जहां 10% लगना है वहां पे वो फिर 30% लगा देगा। तो इसमें काफी लड़ाइयां हुई हैं, हजारों केसेस हैं, कोई एक केस नहीं है, हजारों केसेस है, हजारों टेस्ट हैं। मैं सिर्फ आपको CVDT के 3 सर्कुलर डिस्कस करूंगा, सिर्फ 3 सर्कुलर, जो कि सम एंड सब्सटेंस में उन सारे केसों को समराइज कर लेते हैं। सर मैं जिसके आगे स्टार लगाऊंगा वो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। CVDT ने ऑफिस मेमोरेंडम 2005 में 13 दिसंबर 2005 में निकाला था,
wherein it laid down certain tests for it AO. ऑफिस मेमोरेंडम सर आप पे बाइंडिंग नहीं है, लेकिन एओ पे बाइंडिंग है, क्योंकि एओ को मानना ही मानना है. Where trading was allied to his usual trade or business, was incidental to it, or was an occasional independent activity. साहब अगर मेरी एक एनबीएफसी है जो अपने ऑब्जेक्ट में लिख देती है, अगेन दिस इज नॉट द ओनली टेस्ट, इसके साथ 10 और टेस्ट लगेंगे, बट एक टेस्ट ये भी है. एनबीएफसी का ऑब्जेक्ट है कि आई विल इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स और आई विल ट्रेड इन स्टॉक्स. तो माय इन्वेस्टमेंट और माय अक्विजिशन ऑफ शेयर was allied to my usual business or was incidental to it. ये कोई इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है नहीं है, इस पे मैं कमेंट नहीं करूंगा, बट एओ कह सकता है. तो ये एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है कि whether what are my objects, what is my business, and am I and is this investment or trade in stock exchanges incidental to my business or not. कि क्या ये एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी. मैं सीए हूँ सर, दिन से रात अपनी मेहनत करता हूँ, बीच बीच में थोड़ा सा चस्का लग जाता है स्टॉक मार्केट का तो एक दो शेयर खरीद के बेच देते. अगर वो सोल इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है तो वो कैपिटल गेन के दायरे में आएगा, और अगर वो यूजुअल ट्रेड और कॉमर्स से कनेक्टेड है वो पीजीबीपी के दायरे में आएगा. दिस इज वन ऑफ द टेस्ट, नॉट द ओनली टेस्ट. आप ये फेल हो जाते हैं तो आगे भी सक्सीड हो सकते हैं, आप यहाँ सक्सीड हो जाते हैं आगे फेल हो सकते हैं. इनको क्यूमुलेटिवली देखना है जितने भी टेस्ट को है. ऐसा कोई हार्ड स्ट्रेट जैक फॉर्मूला नहीं है कि ये 4 पूरी कर ली तो आपका कैपिटल गेन बन जाएगा, बिजनेस बन जाएगा. इनको क्यूमुलेटिवली देख के आपको बताना. दूसरा कहते हैं whether purchase is made solely with the intention of resale at a profit or for long term appreciation or for earning dividend and interest. साहब मैं आईटीसी ले लेता हूँ, आईटीसी में मुझे गेन वेन तो कुछ आता नहीं है, डिविडेंड ही आता है. कल भाग गया, आ गया सर, आ गया. मैंने जब रट्टा मारा था इस लाइन को तब तो नहीं, वो आ गया सर रातों रात, तो एक अलग बात है. It was on a lighter note. मेरा if I am purchasing a share to earn dividend from that share, आज सरकारी कंपनियां बहुत बढ़िया कंपनी है, इनके रेट ज्यादा बढ़ते नहीं है लेकिन 10% की डिविडेंड यील्ड होती है. तो मैं जब इनमें घुसता हूँ तो मेरा इंटेंशन इज टू अर्न डिविडेंड. मैं पैसे लगा के रखूंगा, मुझे आज एफडी में 5% 4% ब्याज, मतलब जो रिस्की बैंक है वो भी 4 या 5% ब्याज दे रहे हैं, और ये सरकारी कंपनियां डिविडेंड 10% दे रही है. तो मेरी इंटेंशन वाज टू अर्न डिविडेंड फ्रॉम दीज शेयर्स और लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन की लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा. I did not purchase it on day 1 to sell it on day 2. तो intention is a very important point. और मान लीजिए, या फिर मैं intention कहाँ से पता चलती है? Intention पता चलती है आपके notes to account से. सर आप अपने notes to accounts में क्या लिखते हैं? मैं आगे जब कुछ क्योंकि हम लोग शेयर मार्केट में काफी डील करते हैं तो हमने कुछ नोट्स टू अकाउंट जो हमने क्लाइंटों के में स्पेसिफिकली क्लियर कर रखा है कि अगर इतने दिन से कम है तो मेरा कैपिटल गेन में बिजनेस में लेके जाना, स्टॉक इन ट्रेड है, एंड इससे दिन से ज्यादा रखा है तो मेरा उधर लेके जाना कैपिटल गेन में. तो हमने अपनी इंटेंशन क्लियर डिक्लेयर कर दी है. 15 दिन से कम में मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मेरी कैपिटल बिजनेस है, 15 दिन से ज्यादा रख रहा हूँ तो मेरी इंटेंशन उसको लॉन्ग टर्म रखने की है. And this is a very important test. This is again a very important test. My intention, how do I treat it? How do I show it in my books of accounts? तीसरा है whether activity is substantial, means scale and quantum of activity is also important. साहब आज मैं 100 करोड़ का आदमी हूँ और मैं लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख के ट्रेड कर लेता हूँ, तो कोई क्वांटम कोई बहुत सब्सटैंशियल नहीं है. लेकिन मान लीजिए मैं आज 1 करोड़ का आदमी हूँ और मेरी जो ट्रेडिंग कैपेसिटी है वो मैं दिन में 2-2 3-3 4-4 करोड़ के ट्रेड कर रहा हूँ. मैं करोड़ों की कैपिटल लोन पे लेके ट्रेड कर रहा हूँ. आई एम डूइंग इट विद अ सब्सटैंशियल क्वांटम. माय क्वांटम ऑफ एक्टिविटी, दिन में 10 ट्रेड मार रहा हूँ कि 20 ट्रेड मार रहा हूँ, 100 ट्रेड मार रहा हूँ या 10 दिन में 1 ट्रेड मार रहा हूँ. These are very important points. Again, this is a very important point. Whether this activity is substantial, इसमें आप हर तरीके से देखेंगे. मेरा टाइम, मेरी कैपिटल, मेरी अगेन टाइम ड्यूरेशन, मेरी कैपिटल, हर चीज देखेंगे सर आप यहाँ पे. Whether transaction was entered into continuously and regularly during the assessment year, this is called recurrence of transaction. क्या मैं बार बार शेयर ट्रेड कर रहा हूँ, सुबह 10 बजे 11 बजे 12 बजे 1 बजे 2 बजे 4 बजे 3-3:30 बजे एंड तक शेयर ट्रेड कर रहा हूँ, रोज के रोज ट्रेड कर रहा हूँ, कि मैं आज एक हफ्ते में 1 ट्रेड मार लिया, 2 हफ्ते में 1 ट्रेड मार लिया, 2 मार लिए, 10 भी मार लिया.
मैं सीए हूँ, मैं अपना रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बीच बीच में 1 2 3 4 ट्रेड मारता रहता हूँ, तो या इट इज रिकरिंग इन नेचर, बट इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एंड रेगुलर। बट मान लीजिए इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस एंड रेगुलर, मैं दिन से रात तक 10 ट्रेड मारता हूँ, 20 ट्रेड मारता हूँ, निफ्टी यहाँ शॉर्ट करता हूँ, निफ्टी बैंक प्लस करता हूँ, तो देर इज रेगुलरिटी एंड कॉन्टिन्यूटी। एक एक ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई एक क्लॉज डिटरमिन नहीं करेगा ये पीजीबीपी में आएगा या कहाँ पे आएगा। फिर ये कहता है कि वेदर परचेजेस आर मेड आउट ऑफ माय ओन फंड और बोरोइंग। सर एक बड़ा सिंपल सा बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इन्वेस्ट वो करो जो आपका हो, जो आपकी पूंजी से हो। इन्वेस्टमेंट में हमेशा अपनी पूंजी से, आई विल ऑलवेज मेक इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ माय ओन कैपिटल। लेकिन बिजनेस के लिए मैं लोन भी लूंगा। अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए अपनी कैपिटल में है और उसमें से 10 20 50 लाख रुपए मैंने लगा भी दिए, तो आई एम इन्वेस्टिंग आउट ऑफ माय ओन कैपिटल, आई एम नॉट एज्यूमिंग रिस्क, इट इज माई सेविंग, और उस सेविंग को मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ फॉर अर्निंग फॉर ग्रेटर अप्रिसिएशन। बट अगर मान लीजिए मेरी कैपिटल ही 1 करोड़ है और मैंने 3 करोड़ का लोन लेके 4 करोड़ मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, तो आई एम डूइंग इट एज अ ट्रेड एंड कॉमर्स, इट इज एन एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, तो इट इज अ बिजनेस एक्टिविटी। सर बार बार मैं एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड कॉमर्स इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि एक्ट में डेफिनेशन ही बिजनेस की ऐसी कुछ दी गई है। सिंपल से अपने पैसे से कर रहा हूं तो इन्वेस्टमेंट है, और उधार लेके कर रहा हूं तो अगेन क्या कहते हैं, बिजनेस है। बट देन अगेन दिस इज आल्सो नॉट सैक्रोसेंट। हर टेस्ट को मैं बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि हर टेस्ट को आपको क्यूमुलेटिवली देखना है, सारे टेस्टों को। एक इंडिविजुअल टेस्ट में मैं फॉल कर गया, और यही एओ गलती करता है। जब एओ आपकी रिकैरेक्टराइजेशन करता है ऑफ माय बिजनेस इनकम इनटू कैपिटल गेन और कैपिटल गेन इनटू बिजनेस इनकम, वो कोई भी एक टेस्ट पकड़ के कहते हैं जी आपने ये टेस्ट फेल कर दिया इसलिए मैं कर देता हूँ, और यही आपका छुड़ाने का तरीका बनता है। आप बताइए जी आपने ये 10 टेस्ट नहीं देखे, इन 10 टेस्टों में मैं शायद एक कैपिटल गेन बनता था और बिजनेस नहीं बनता, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे मेमोरेंडम ऑफ ऑब्जेक्ट्स और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्ट क्या है, इफ लेट्स से आई एम अ स्टॉक ट्रेडिंग कंपनी, तो जो भी होगा मेरा बिजनेस इनकम होगा। और मान लीजिए मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ ऑफ रॉ मटेरियल्स और मेरे पास कुछ सरप्लस पड़ा है जो मैंने म्यूचुअल फंड या शेयरों में लगा दिए, तो उसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं है। होल्डिंग पीरियड फॉर सिक्योरिटी, अगर मैं अगेन इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट गाइड, बट देन आज की डेट में मैं कहूंगा दिस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट गाइड, क्योंकि मैं आज एक्टिव इन्वेस्टिंग पैसिव इन्वेस्टिंग में बिलीव करता हूं। अगर मान लीजिए मैं आज शेयर खरीदते कल बेच देता हूँ, तब परसों किसी ने आईटीसी खरीदा होता तो 215 में मिलता, और कल अगर वो बेचता तो 235 में बिकता उसका। 20 रुपए का गेन उसको एक दिन में आ गया, यानी 10% की अप्रिसिएशन मोटा मोटी। तो जस्ट बिकॉज मैंने एक दिन में बेच दिया, यू कैन नॉट कैरेक्टराइज गेन फ्रॉम आईटीसी एज इनकम इन द नेचर ऑफ पीजीबीपी, क्योंकि अब वो जमाने चले गए। 2005 की चीज है, 2005 में तरीके भी अलग थे, माहौल भी अलग था। आज की डेट में अवेयरनेस भी अलग हो गई है, यूथ भी स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा गुजरी है। अब इन्वेस्टिंग को भी आपको 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा, एक्टिव इन्वेस्टिंग, पैसिव इन्वेस्टिंग। और एक्टिव इन्वेस्टिंग में कई सारे आपको चीजें दिखेंगी जो कि पीजीबीपी में कैटेगराइज करती, लेकिन देन ऑल्सो इट शुड नॉट बी अगेन पीजीबीपी, इट शुड बी कंसिडर्ड एज एन इन्वेस्टमेंट। मैं एक सीए हूं सर, मैं दिन के 1-2 ट्रेड्स मार लेता हूँ। अब कल को कोई एओ कहे जी आपने साल में 600 ट्रेड्स मारे, अच्छा 1-2 ट्रेड्स मारने का मतलब होता है एक खरीदा एक बेचा। 500 ट्रेड्स मारे और 500 को बेचा, उसको जब रिवर्स किया तो एक और ट्रेड मान लीजिए कर लिया है, कुछ कर लिया, तो एओ कहे जी आपने साल में 700-800 ट्रेड मारे हैं, आपकी तो पीजीबीपी है। लेकिन सर मैंने टाइम कितना डिवोट किया, सुबह मैंने देख लिया ये शेयर बढ़ रहा है खरीद लिया, शाम को गिर रहा है बेच दिया। 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे में से जो मेरे पास दिन में मैंने सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट डिवोट करे, तो दिस इज एक्टिव इन्वेस्टिंग, दिस इज नॉट बिजनेस। अब जब भी आप केस लड़ेंगे, ये देखिए ये कहीं पे प्रेसिडेंट नहीं है, ये मेरे अपने दिमाग की उपज है, क्योंकि मैं ऐसे केसेस डील कर रहा हूं। तो मैं एक नई प्ली लेकर आ रहा हूं कि साहब पुरानी चीजें भूल जाइए, अब 21वीं सेंचुरी में आ जाइए। आज मोबाइल पे ट्रेडिंग हो जाती है, आपको कुछ नहीं करना होता, जीरोधा पे आप जाइए, आपका 15 मिनट में अकाउंट खुल जाता है। मोबाइल पे कोटक की ऐप डाउनलोड कीजिए, 15 मिनट में अकाउंट खुल जाता है, 10 मिनट में आप शेयर खरीद के उसको और 10 मिनट में आप बेच भी सकते हैं। दिस इज एक्टिव इन्वेस्टिंग एंड नॉट बिजनेस। तो आगे जब आप इन केसेस को डील कीजिएगा तो आप ये एक्टिव इन्वेस्टिंग और पैसिव इन्वेस्टिंग को जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये जितने भी चीजें बनी है इन्वेस्टिंग वर्सेस बिजनेस की बनी है। एक्टिव इन्वेस्टिंग
और पैसिव इन्वेस्टिंग वर्सेस बिजनेस के साथ नहीं बनी। अगेन ये एक्सीडेंट नहीं है, ये मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि टाइम के साथ चीजें बदलती है तो पढ़ने का तरीका भी बदलना पड़ेगा। पारस, ये कैसे मालूम पड़ेगा कि तुमने 10 मिनट में देख के खरीद लिया? हो सकता है तुम दिन भर देखते रहे, बड़ा घटा साहब बड़ा मैंने घटा, ट्रेडिंग करी क्या? और फिर शाम जाके शाम को 2 मिनट में जाके क्लिक करके ले लिया। चल मैं उसको दिखा दूंगा, मैंने दिन के 10 यूडिन बनाए थे। मैं उसको दिखा दूंगा, मैंने दिन की 10 ग्रीवेंस फाइल करी थी उसकी वेबसाइट पे कि यार इसका रिफंड नहीं आ रहा, ये तुम्हारी वेबसाइट नहीं चल रही, इसकी अपील नहीं जा रही, इसका 15 सीबी नहीं जा रहा। मैं दिखा दूं कि मैं 10 दिन में 10 काम और किए थे। और सर फ्रैंकली बताऊं, अगर मैं साल के 200-300 शेयर खरीद बेच भी रहा हूं तो कोई मेरा पूरा दिन नहीं जाता। मेरा टाइम अपने प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, मेरी सब्सटैंशियल इनकम इज फ्रॉम माय प्रोफेशन। मैं ऑडिट्स कर रहा हूँ, मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ, मैं केसेस लड़ रहा हूँ, मैं हर चीज कर रहा हूँ, तो मेरा टाइम जा रहा है। मैं सीए के एक पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। जब आप बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव में आ जाओगे, मैं सर कुछ भी नहीं कर रहा, मैं बिजनेस डेवलपमेंट कर रहा हूँ। खाली बैठा हूँ ऑफिस में, मैं बिजनेस डेवलपमेंट कर रहा हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इट इज माई पार्ट ऑफ माई बिजनेस सर। हाँ, वो आपने सीए का नाम लिया तो वो एक एफएनडो का भी लास्ट लास्ट टाइम भी शायद कुछ कंट्रोवर्सी थी कि एक नहीं सीए सर, एफएनडो। हाँ जी जी जी। हाँ जी, पारस जी। हाँ जी संजीत जी। ओह, संजय जी आ हाँ रहे जी। हैं? अरे सर आज अरे संजीत सर, की प्रेजेंट लग गई। संजय जी, यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक नाउ, बिकॉज आपको शुरू से ज्वाइन करना चाहिए था। ये ऐसा नहीं होता कि आप नहीं सर, मैं शुरू से ही हूँ, सर। चेक द अटेंडेंस शीट। वो अटेंडेंस शीट तो हमारी भी शुरू से चलती है। ये वीडियो ऑपरेटिंग अलाउड नहीं है आपको कहीं। नहीं नहीं नहीं, जो पुराने नहीं नहीं। पुराने जो मैनेजिंग कमेटी के मेंबर थे हमारे, और जो संचित हैं, भारत हैं, सौरभ हैं, ये इनको लाइव रहना ही है। बिल्कुल सर, हम आपके साथ ही हैं। सर हाँ, आजकल ये फोटो भी दिखानी है। संजय जी के केस में आजकल वो जितने मर्जी शेयर खरीद लें, ही इज नॉट इनटू बिजनेस ऑफ शेयर, क्योंकि आजकल संजय जी घर बनाने में इतने बिजी हैं कि उनको और अरे ही नहीं सकती। संजय जी बोलिए, सॉरी। अरे पारस जी, इफ somebody is investing in IPO for listing gains, उस केस में आपका क्या व्यू होगा? सर इन्वेस्टमेंट है, प्योर कट इन्वेस्टमेंट है। रिटेल इन्वेस्टर में कर रहा हूँ, एचएनआई में कर रहा हूँ। बड़ी सारी कैटेगरियां होती है। मैंने 2 लाख से नीचे की एप्लीकेशन लगाई, एक तो अपने आप में रिटेलर की बन गई। दूसरा, अगर मैं 2 लाख के ऊपर की लगा भी रहा हूँ और खुलते ही आईपीओ में मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। देखिए सर, इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है इज टू अर्न प्रॉफिट। ऐसा कोई लिखा नहीं है कहीं पे कि मुझे 10 दिन बाद या 50 दिन बाद या 70 दिन बाद ही प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट होगा। अगेन मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो कानून बने हुए हैं, जितने केस लॉज हैं, ये इस चीज को इग्नोर करते हैं कि आज की डेट में एक एक्टिव इन्वेस्टमेंट भी आ चुकी है। आज हमारी सिर्फ 4% पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट्स में इन्वॉल्व है, और इतना पैराडाइम शिफ्ट आ चुका है स्टॉक्स में। यूएस में 55% पॉपुलेशन इन्वॉल्व है स्टॉक मार्केट्स में। आप फाइनेंशियल लिटरेसी जैसे बढ़ेगी, अब यूथ आजकल देखो सर, पता नहीं है बच्चे को, कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है, क्रिप्टो करेंसी खरीद लेता है, कहता है जी मैंने 10,000 रुपए के खरीदे, पॉकेट मनी से सेव कर करके 11,000 हो गए मेरे। मैंने यार तुम मजे कर रहे हो यार हमको, और 2 घंटे में तुम्हें 1,000 रुपए की रिटर्न आ गई। अब क्या कहोगे, वो बिजनेस कर रहा है, पापा के फोन पे करता है, बच्चा है अभी। बिजनेस थोड़ी। तो वैसे भी इंडिया में पिछले जब से ये लॉकडाउन हुआ या व्हाटएवर, कितने नए लोग, करोड़ ऑफ न्यू इन्वेस्टर्स हैव जॉइंड द मार्केट, यू नो। जी सर, करोड़ ऑफ न्यू अकाउंट्स हैज बीन ओपन। इसी का नतीजा है लॉकडाउन का कि हमारे इंस्टीट्यूट ने मेंबर्स को एफएनओ ट्रेडिंग अलाउ कर दी है। अच्छा, was not allowed. Yes, हाँ जी, that was done during अलाउ कर दिया है? Yes. हाँ जी सर कर दी। मुझे लगा आप वही बता रहे थे, आई थिंक बैकडेट से, पुराने बैकडेट। पुराना तो सर, नहीं, मतलब इस नहीं दौरान नहीं जब नहीं, से मैं कंट्रोल सर इस पे ना करते दो हुए शब्द बोलना चाहूंगा, 2 शब्द बोलना चाहूंगा। वो कहते हैं कि जी स्पेकुलेशन अलाउड नहीं है। अच्छा, स्पेकुलेशन की डेफिनेशन कहाँ से उठाते हैं? स्पेकुलेशन की डेफिनेशन उठाते हैं इनकम टैक्स से। अरे साहब, आपका आईसीआई का गवर्निंग लॉ है, आप इनकम टैक्स क्यों देख रहे हैं स्पेकुलेशन देखने के लिए? आप वो देखिए ना, एम आई एंगेज इन एनी अदर एक्टिविटी। आप कहते हैं कि यू कैन नॉट बी एंगेज इन एनी अदर एक्टिविटी, और एक्टिविटी इन द नेचर ऑफ बिजनेस आप कहाँ से उठाते हैं? इनकम टैक्स से। सब मैं इनकम टैक्स का बिजनेस जो होता है वो तो कितनी चीजें डीम भी कर सकता है। तो क्या मेरा इंस्टीट्यूट में मेरी टेक्निकल क्या कहते हैं, एक वो बन जाएगी, मिसकंडक्ट बन जाएगा? नहीं सर। मतलब मैंने एक शेयर खरीद के 31वें दिन बेच दिया तो वो कैपिटल गेन में है, तो इंस्टीट्यूट को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैंने 29th डे बेच दिया तो वो बिजनेस बन जाता है, तो इंस्टीट्यूट को प्रॉब्लम है कि मैं एक बिजनेस। सर ये तो कोई टेस्ट ही नहीं होता ना। अब क्या इनकम टैक्स बताएगा कि सीए मिसकंडक्ट में है कि नहीं है?
वो भी अपने इंस्टीट्यूट के गाइडलाइंस में फॉर बिजनेस। दिस इज प्योर, आई थिंक क्या कहते हैं, आई थिंक ये कभी था भी सही नहीं, वो एक वो इशू था। पारस जी आप म्यूट हो गए हो। सर मैं तो इतना, मैं कुछ काफी चीज बोल रहा था, मैं शुरू से म्यूट में हूँ कि अभी हूँ जस्ट? नहीं नहीं, अभी अभी हुए थे, बात हमने सुन ली थी। टाइम डिवोटेड टू द एक्टिविटी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एक्सटेंड टू विच मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर डिपेंडेंट अपॉन दैट एक्टिविटी। साहब अगर मैं अपना पूरा दिन डिवोट करता हूँ, मैं खाना ही घर का शेयर मार्केट से खा रहा हूँ, तो हाँ इट इज एन एक्टिविटी इन द नेचर ऑफ ट्रेड और कॉमर्स। अदरवाइज नो, इट इज नॉट एन एक्टिविटी इन द नेचर ऑफ ट्रेड और कॉमर्स, इट इज मेयर इन्वेस्टमेंट। सर ये एक्टिव इन्वेस्टिंग एक आपको नया कंसेप्ट, अगेन मेरा अपना बनाया कंसेप्ट है, बट आज की डेट में मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। फिर ये कहते हैं कैरेक्टराइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। आप बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं, विच इज ऑल्सो योर इंटेंशन। इंटेंशन क्या थी आपकी? फिर कहता है वेदर सिक्योरिटी परचेजेस आर लिस्टेड और अनलिस्टेड। आप अनलिस्टेड खरीद रहे हैं, तो ये पुराने हैं तो सिर्फ लिस्टेड के परस्पेक्टिव से नहीं थे, तो मैंने लेकिन डाल दिए। इस पे अगर सारा आपने एक मैं इनपुट देना चाहूंगा। बोलिए ना सर। मैंने पर्सनल एक केस में देखा कि जैसे जो अभी आकाश जी भी बात कर रहे थे कि ब्रोकर की स्टेटमेंट हमने निकाल के लगा दी, जी अब सर। बाई चांस उस स्टेटमेंट में पीएनएल लिखा हुआ था इंस्टेड ऑफ कैप गेन्स, और हमने वही स्टेटमेंट आगे एओ को दे दी। कोई फर्क तो नहीं पड़ता सर। एओ ने इस चीज पे अड़के कि आप उसको खुद पीएनएल दिखा रहे हो, तो मैं इसको बिजनेस मानूंगा। उसने उसको ब्रोकर का भी तो नाम लिखा हुआ है ना सर, बड़ा बड़ा। लेकिन इतना तक भी अड़े जाते हैं, मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ। हाँ नहीं नहीं, वो तो सर अड़ने मत हो ना, उनको जब एडिशन करनी है तो क्या कहते हैं, वो अड़ेंगे तो 100% है ही ना। हम्म। वो तो अगर वो सर आपका केस ही कहाँ से रहेगा। सर कभी कभार अकाउंटिंग में टैली में हम शेयर सेल परचेज को सेल और परचेज कर देते हैं, सर कितने वो लेजर एओ के पास पहुंचे तो वो तब भी उसको बिजनेस मानने का, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो कैपिटल गेन है। सर मैं आपकी बात नहीं फॉलो कर पाया, थोड़ा सा आई थिंक वॉल्यूम में इशू था, प्लीज एक बारी चेक कीजिए। सर आई वाज टेलिंग कि कभी कभार ना अकाउंटिंग, इंडिविजुअल अकाउंटिंग करते वक्त जो सेल और परचेज की ट्रांजैक्शंस हैं वो सेल में और परचेज में एंटर कर देते हैं अकाउंटेंट जो है, और वो जो लेजर है वो कभी एओ के सामने प्रोड्यूस हो जाए तो एओ उसको बिजनेस इनकम कहता है और कैपिटल गेन, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो कैपिटल गेन ही है। तो सर आप ऐसे केस में ना क्या किया कीजिए, वो जो सेल की जो नेचर होती है ना, उसको इन्वेस्टमेंट दिखा दो। आपको ऑल्ट एंटर दबाना है टैली के खाते में, और वो जो ग्रुपिंग होती है, ग्रुपिंग उठा के कैपिटल गेन में उसमें इन्वेस्टमेंट में कर दो, तो वो वहां से पीएनएल से निकल ही जाएगी। लेकिन अगर आपने पीएनएल अकाउंट दिया जो कि प्रॉपर पीएनएल अकाउंट है, जिसमें आपकी बाकी प्रोफेशनल रिसीट्स भी आ रही हैं या प्रोफेशनल सेल्स भी आ रही है और शेयर की सेल परचेज भी दिखा रहे हो, तो फिर आपने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया ना कि ये बिजनेस है। तो वो सर फिर अकाउंट आप अच्छा चूज कीजिए। मैं तो ये कहूंगा जो क्लाइंट स्टार्टेड अकाउंटेंट और अकाउंटेंट में शायद यही फर्क है, और इसीलिए शायद हम लोग रेलेवेंट है। वेदर ट्रांजैक्शन इज बाय प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी या मतलब कोई मेयर इन्वेस्टर है, ये भी कुछ है। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक डेल्ट इन, अगेन क्वांटम। इसके बाद सारे ना क्या कहते हैं, ये सारे रिपीटिशंस ही हैं, तो मैं इनको स्किप करना चाहूंगा क्योंकि थोड़ा टाइम भी शॉर्ट है मेरे पास। तो मोटा मोटा मैंने आपको ये सारे कवर कर लिए। अगेन 2007 में एक सर्कुलर आया था विच सेड दैट इट इज पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू हैव 2 पोर्टफोलियोज। साहब मैं एक्टिवली डील कर रहा हूँ शेयर में, मैं खुद कहता हूँ कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ शेयरों का, लेकिन मैं एक अपना उसमें इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी बना रहा हूँ। तो सीबीडीटी ने काफी सारे केसेस इस पे आ रखे हैं फेवरेबल, तो सीबीडीटी ने इसको एक्नॉलेज किया कि इट इज पॉसिबल फॉर वन टैक्स पेयर टू हैव 2 portfolios, one an investment portfolio comprising of security which are treated as capital asset, and second a trading portfolio which is comprising of stock in trade which are to be treated as trading assets. अब ऐसे केसों में intention of yours or how you have shown it in your books of accounts becomes most important. तो एओ को ये बोला कि साहब अगर उसने एक ट्रांजैक्शन बिजनेस में दिखा दी, तो ये नहीं कि उठा के सारी की सारी कैपिटल उठा के बिजनेस में ले आना। एक आदमी के 2 पोर्टफोलियो हो सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड सर्कुलर अगेन। और ये सारे सर्कुलर जितने भी है सर केसों के बाद आए हैं, कोई अपनी मर्जी से नहीं दिए इन्होंने। 2016 में एक ये बहुत बढ़िया सर्कुलर आया था सर, इसमें 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 मैं अपना चीजों को
थोड़ा सा ऊपर क्या कहते हैं डिटेल में वैसे क्या अभी कर लेते हैं। अगर आपने कोई भी शेयर असेसी इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ होल्डिंग द लिस्टेड शेयर्स, चाहे आपने 1 दिन होल्ड किया, 10 दिन होल्ड किया, 10 साल होल्ड किया, इफ यू आर ट्रीटिंग इट एज स्टॉक इन ट्रेड, income from such shares or security would be shown as business income. अगर आप खुद कह रहे हैं कि ये बिजनेस का शेयर है, बिजनेस इनकम है, दिस शेयर इज हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड, तो एओ के पास अब डिस्क्रिशन ही नहीं बची कि उसको कैपिटल गेन कैरेक्टराइज कर दे। इसका मतलब आप अगर बिजनेस कह रहे हैं तो वो बिजनेस ही रहेगा, चाहे एओ जो मर्जी करे। आप कैपिटल गेन कह रहे हैं तो एओ शायद उसे बिजनेस रिकैरेक्टराइज कर सकता है, लेकिन अगर आपने बिजनेस खुद कह दिया तो एओ से डिस्क्रिशन हटा ली गई है। सेकंड पॉइंट ये कहता है लिस्टेड शेयर्स हेल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स, listed shares and securities which are held for more than 12 months, if assessee treats the income as capital gain, then the same shall not be put to dispute by AO. अगर कोई शेयर मैंने 1 साल से ऊपर होल्ड कर लिया और मैं उसको कैपिटल गेन कहता हूं, कैपिटल एसेट कहता हूं, तो एओ उसको डिस्प्यूट नहीं कर सकता। तो अब एओ से सारी डिस्क्रिशन ही हटा ली। अगर मैंने बिजनेस दिखा दिया तो एओ से डिस्क्रिशन हटा ली, उसकी रिकैरेक्टराइजेशन की, और अगर मैंने कोई शेयर 1 साल से ऊपर रख लिया और मैं उसको कैपिटल गेन दिखा दिया तो एओ से उसकी भी डिस्क्रिशन हटा ली। अब एओ के पास सिर्फ एक ही डिस्क्रिशन है। 1 साल से नीचे कोई शेयर अगर है जो मैं कैपिटल गेन कैपिटल एसेट दिखाता हूं, वो उसको रिकैरेक्टराइज कर सकता है बिजनेस, और कुछ नहीं कर सकता। ये 2016 का जो सर्कुलर था, इसने काफी पावर्स एओ की कर्टेल करती है, और राइटली सो, क्योंकि एओ अगर ऐसे कुछ काम करता भी था तो अपीलों में, इनफैक्ट सीआईटी अपील तक इस पे रिप्लाई दे देते थे। जो सीआईटी अपील बिल्कुल रिलीफ नहीं देते थे, वो तक रिलीफ दे देते थे ऐसे मैटर्स में। लेकिन हाँ, साथ में ये भी लिख दिया स्टैंड वंस टेकन शुड बी टेकन इन सब्सिक्वेंट। ये नहीं कि 1 साल में आप कुछ दिखा दो, अगले साल में कुछ दिखा दो। यूनिफॉर्मिटी इज इंपॉर्टेंट। अब कहते हैं टैक्सेशन अंडर पीजीबीपी, अगर पीजीबीपी में आएगा तो इट विल बी टैक्स्ड अंडर सेक्शन 28। शेयर्स विल बी अकाउंटेड एज परचेज, सेल एंड स्टॉक इन ट्रेड। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा बनाना पड़ेगा, परचेज सेल शेयर की दिखानी पड़ेगी रेलेवेंट कॉलम में, और क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक सब दिखाना पड़ेगा। अब आपको डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस विल बी अलाउड इंक्लूडिंग एसटीटी। कैपिटल गेन के केस में एसटीटी नहीं मिलता है, पीजीबीपी के केस में एसटीटी मिल जाता है। यू विल हैव टू मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अगर 44AA में आपको रिक्वायरमेंट है, और यू विल हैव टू गेट योर सेल्फ टैक्स ऑडिटेड अगर 44AB में आपको रिक्वायरमेंट है। और अगेन टर्नओवर टैक्स ऑडिट का कैसे कंप्यूट करना है मैं आगे बताऊंगा मैं क्या कहते हैं, मैंने क्योंकि उस पर स्पेसिफिक स्लाइड बना रखी है। फिर स्पेकुलेटिव, नॉन स्पेकुलेटिव, ये भी मैं आगे बता दूंगा। इसमें एक चीज पूछनी थी, बोलो ना। अगर हम पीजीबीपी करते हैं इसको, जी सर, तो स्टॉक की वैल्यूएशन जैसे नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे करनी होती है। मेरा कोई स्टॉक व्हिचएवर इज लोअर कर सकता हूं। स्टैंडर्ड लग गया ना साहब? हाँ जी। अच्छा, एक कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर के मारे बड़ी, तो इसकी तो लिस्टेड प्राइस अवेलेबल है, और कोई शेयर जो किसी का डिस्टरबेंस आ रही है पीछे से, तो मैं आपकी मैंने कर दिया, म्यूट कर दिया। हाँ जी बताइए। तो कोई अगर स्टॉक है मेरा सब्सटेंशियली नीचे गिर गया है, मतलब परचेज प्राइस से, जी सर, 100 रुपए का 1 रुपया रह गया, 2 रुपए रह गया, तो मैं उसको 2 रुपए पे वैल्यू करके दिखा दूं जो क्लोजिंग रेट है मार्च का। साहब आईसीडीएस ये कहता है, आईसीडीएस भी आपको कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर पे अलाउ करता है, लेकिन आईसीडीएस ये और लिख देता है कि बकेट अप्रोच फॉलो करनी है। सारे शेयरों को एक साथ वैल्यू करना है, कॉस्ट पे और एनआरवी पे, और टोटल अगर नीचे आता है तो ही आप वाली वैल्यू। मान लीजिए आपका एक शेयर 100 का 1 रह गया और दूसरा शेयर 200 का 500 पहुंच गया, तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके। ये आईसीडीएस में बकेट अप्रोच की बात करता है। तरुण जी एंड राजीव जैन सर आई थिंक आर अथॉरिटी ऑन दिस, मैं तो थोड़ा बहुत ही जानता हूँ, बट हाँ आईसीडीएस में शायद आपको अगर आप इनकम टैक्स बेनिफिट की बात कर रहे हो तो शायद इनकम टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। तो इसमें 2 ऑप्शन होगा ना, अपनी आप बुक्स कैसे मेंटेन करोगे और इनकम टैक्स कैसे कंप्यूट करोगे, दोनों बातें अलग होंगी। सर वो आपकी एक, हाँ जी तरुण जी अगर सुन रहे हैं तो उस पे तरुण जी कुछ कमेंट दे देंगे अपने। हाँ जी सर, मैं दोबारा सुनना चाहूंगा सर। अगेन तरुण जी, हम सिर्फ यही बात कर रहे थे कि अगर मान लीजिए एक शेयर की वैल्यू, मैं अगर स्टॉक इन ट्रेड दिखा रहा हूँ और एक शेयर की वैल्यू सब्सटैंशियली डिप्लीट कर गई है, तो एज पर अकाउंटिंग कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर लेनी पड़ेगी मुझे। एनआरवी आज मान लीजिए कोई 200 रुपए का शेयर था जो आज 5 या 10 रुपए का हो गया है, तो मैं 190 का लॉस बुक करूंगा अपने पीएनएल में।
लेकिन जब हम ICDS में आएंगे तो बकेट अप्रोच लगेगी, सारे शेयरों की कॉस्ट और सारे शेयरों के NRV को एक साथ टैली करेंगे, और उसके बाद अगर मेरे को नीचे आ रहा होगा तो उस केस में मुझे बेनिफिट मिलेगा इसमें कोई, ठीक है ना? ठीक है सर। स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन पे आते हैं। स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन मींस, सर आप तरुण जी आपने कुछ बोलना था क्या इसमें, और कुछ ऐड करना है तो बता दीजिए तरुण सर। आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो, हाँ जी सर, हाँ जी ये सर। बहुत ज्यादा इको हो रही है। आपने मतलब बेसिकली हमें बुक्स में तो लॉस दिखाना पड़ेगा एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बट व्हाइल कंपटीशन ऑफ इनकम ICDS का इम्पैक्ट डालना पड़ेगा। जी सर, जी सर, जी सर। कुल मिला के टैक्स बेनिफिट शायद नहीं हो पाएगा अगर आपके पास और शेयर है जिनकी वैल्यू एनहांस हो गई। Speculative transaction means a transaction in which contract for purchase, sale of purchase or sale of stock, अब सीधा आ जाता हूँ, settled otherwise than by actual delivery of the commodity or script। मतलब आपने चीज की एक्चुअल डिलीवरी आने से पहले ही उसको बेच दिया। अगर आप शेयरों के पर्सपेक्टिव में हम बात करेंगे तो T+2 डेज में सेटलमेंट होती है, T+2 डेज में सेटलमेंट होती है। अगर आप आज शेयर कोई खरीदते हैं और उसको आज ही बेच देते हैं तो कभी वो आपके खाते में डिलीवरी लगेगी ही नहीं उसकी, और क्योंकि कभी वो डिलीवरी लगेगी ही नहीं तो इट विल बी a speculative transaction because it was sold otherwise than by actual delivery of goods. Now this will be my intraday, and intraday gain in share is taxable as a speculative income. अब कोई कहेगा जी जब मैं F&O करता हूँ तब भी मेरे को कभी डिलीवरी नहीं लगती, तो क्या F&O भी क्या कहते हैं स्पेकुलेटिव है? द आंसर इज नो। अभी मैं जब F&O पे आऊंगा मैं तब बता दूंगा। उसको बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा व्हाट इज एन F&O। Again, we are all chartered accountants and have basic idea. Future is my right and an obligation to buy or sell a stock at a predetermined price at a predetermined time. मान लीजिए आज मैं रिलायंस का फ्यूचर खरीद लेता हूँ, आज 2400 का रिलायंस चल रहा है तो मैंने 2450 का फ्यूचर खरीद लिया, तो जिस दिन सेटलमेंट होगी चाहे रिलायंस का रेट 2800 हो या रिलायंस का रेट 2000 हो, मुझे 2400 रुपए पे रिलायंस को खरीदना पड़ेगा, मेरे पास डिलीवरी लग जाएगी। और अगर मान लीजिए मैंने सेल कर दिया हो 2400 का रिलायंस का फ्यूचर, तो चाहे रेट 2800 हो या रेट 2000 हो, मुझे 2400 रुपए पे रिलायंस को बेचना पड़ेगा क्लोजिंग पे। इसी तरीके से सर ऑप्शंस होती हैं, फ्यूचर में फ्यूचर बायर फ्यूचर सेलर होता है। मैं बहुत ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत डाइवर्सिफाइड एरियाज है और बहुत अगेन टाइम खा जाएंगे और एक बार ही घुस गए इसमें। तो ऑप्शंस में मोटा मोटी इट्स अ राइट विदाउट एन ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल। मान लीजिए मैंने रिलायंस का 2400 रुपए की रेट चल रहा है और 2600 की कॉल मान लीजिए 50 रुपए में आ रही है, तो मैंने 50 रुपए देके ये कह लिया कि रिलायंस का जितना मर्जी रेट होए मैं 2600 रुपए में रिलायंस खरीद लूंगा क्लोजिंग पे। अब चाहे रिलायंस 3000 होए तो भी मुझे 2600 में मिलेगा, लेकिन अगर मान लीजिए रिलायंस 2300 रह गया या 2400 ही रह गया, 2500 ही रह गया, तो मेरे पे ऑब्लिगेशन नहीं है उसको 2600 में खरीदने की। यही फर्क है फ्यूचर और ऑप्शन में। और क्योंकि मेरे पास राइट है बट ऑब्लिगेशन नहीं है, इसलिए मुझे इस पे प्रीमियम देना पड़ता है विच इज कॉल्ड कॉल ऑप्शन। ऐसे ही सेल के क्या कहते हैं, मैं रिलायंस को बेचने का राइट भी रखता हूँ बाय अ पुट ऑप्शन। मैंने जो अभी आपको बताया था वो कॉल ऑप्शन था। अगर मैं कह दूं कि 2600 में मैं रिलायंस बेचूंगा और 50 रुपीज का मुझे प्रीमियम मैं उसके लिए देता हूँ, तो फिर उस केस में आ जाएगा। अब जैसे एक कॉल राइटर होता है ऐसे ही कॉल सेलर भी होता है। तो अगेन ये एक ऑप्शन बायर भी होता है, एक ऑप्शन सेलर भी होता है। मैं बहुत ज्यादा इसमें नहीं करना चाहूंगा क्योंकि हम स्टॉक मार्केट्स के बारे में क्लास नहीं ले रहे, इसकी टैक्सेशन के बारे में। तो जो मेरा इनिशियल क्वेश्चन था कि क्या F&O का गेन will be taxed as a speculative income, the answer is no. The answer is no because 43(5) में कुछ exceptions है। Eligible transaction under clause 2AC of SECRA, it is not a speculative transaction, it will be taxable under the head PGBP। मेरे को F&O में जो भी गेन होगा will be taxable under the head PGBP। अब एक क्वेश्चन आता है, जैसे हम स्टॉक इन ट्रेड में करते थे कि अगर मैं बहुत एक्टिवली काम करूंगा, रोज काम करूंगा तो बिजनेस इनकम बनेगा, लेकिन अगर मैं
क्या नाम है, वन ऑफ ट्रांजैक्शन करूंगा या लेस फ्रीक्वेंटली करूंगा तो वो इन्वेस्टमेंट बनेगा। मैं पूरे साल में एक फ्यूचर एंड ऑप्शन का काम करता हूँ और कुछ नहीं करता। मैं एक इन्वेस्टर हूँ, और मैं गिनती की 10-15 शेयरों में ट्रेड करता हूँ। और टीवी CNBC पे मेरे को पता चलता है कि रिलायंस की कॉल खरीद लो या कॉल बेच लो। मैंने एक ऐसी रिलायंस की कॉल खरीद लो कॉल बेच लो सुन ली, और मैंने उस दिन F&O में काम कर लिया और एक ही बारी काम किया, उसके बाद कभी काम भी नहीं किया। तो क्या ये वन ऑफ ट्रांजैक्शन या जो लेस फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन है ये भी बिजनेस इनकम में जाएगी, या ये कैपिटल गेन या किसी और हेड में जा सकती है? देखिए कैपिटल गेन में तो नहीं जाएगी, बिकॉज देयर इज नो राइट इन एनी कैपिटल, बिकॉज इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। अब इसमें हमारे मैक्सिमम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ये कहते हैं चाहे एक ट्रांजैक्शन कर लो F&O की, वो बिजनेस ही बनेगी। और उसको दिखाने के लिए वो 43(5) दिखाते हैं, जो कि स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन डिफाइन करता है। सब पहले तो जो 43(5) होता है, 43 सेक्शन है, उसका स्कोप है इन सेक्शन 28 to 41, ये डेफिनेशन सेक्शन है। 28 से 41 में अगर कंप्यूटेशन कर रहे हो तो स्पेक्युलेटिव अगर उसमें कुछ होगी तो उसकी ये डेफिनेशन है। तो यानी पहले कोई चीज 28 to 41 में फॉल करेगी तो 43(5) में उसको मैं डिफाइन करने का राइट रखता हूं। जो 1 से लेके 27 में आती है या 44 से लेके इनकम टैक्स पता नहीं 2282 तक जाती है, उसके बारे में कुछ नहीं कहता है सेक्शन। वो कहता है 28 से लेके 41 में जो भी चीज लिखी गई है उसका ये डेफिनेशन है। तो हाँ, कई लोग इस चीज को ओपिनियन करते हैं कि मैं वन ऑफ ट्रांजैक्शन को अदर सोर्सेज में दिखा दूं तो क्या मैं गलत करूं? माय पर्सनल टेक, अगेन माय पर्सनल टेक इज आप दिखा दीजिए। इफ इट इज नॉट एन एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड और कॉमर्स, आप उसको दिखा दीजिए, उसको अदर सोर्सेज में दिखा दीजिए। हाँ जी सर। सर आई कांट हेयर यू, प्लीज पार्डन प्लीज। I think there's some audio issue at your end. I mean, if you could please rectify, or maybe. My voice is not coming. अब आ रही है सर, अब आ रही है, बट थोड़ा सा इशू आ रहा है। It is not a capital asset. हाँ जी। It is not a capital F&O transaction. One transaction I did, and not a capital asset. आप उसे कैपिटल गेन में दिखाते हैं? Why it is not a capital? Right is also asset. हाँ कह सकते हो सर। You have opened a new area for me. Then why to take only? Why can't I take it to a capital gain? Right? It is a right to purchase a right to. Sir, when I purchase a future, I purchase a right. Yes. So how can you purchase a right in that asset to acquire it? लेकिन सर अगेन एक क्रिस्टलाइज राइट और एक नॉर्मल राइट होता है। जब मैं अग्रीमेंट टू सेल करता हूँ, राइट इन एन एसेट मींस राइट टू अक्वायर दैट एसेट। Yes. सर कह सकते हो बिल्कुल, अग्रीमेंट टू सेल ऑफ अ प्रॉपर्टी और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ शेयर एकदम एक ही चीज है टेक्निकली। सेम। हाँ कह सकते हो सर। और ऐड करना चाहूंगा, अब बहुत से शेयर्स ऐसे हैं जो फ्यूचर अगर हम खरीदते हैं या बेचते हैं तो हमें फिजिकली सेटल करना पड़ता है। अगर हम एक्सचेंज पे उसको स्क्वायर ऑफ नहीं करते तो वहां से भी ये पॉइंट क्लियर होता है कि वो कैपिटल एसेट हो सकता है। सर मैं समझा नहीं, क्या कहते हैं कुछ शेयरों पे हमें, अच्छा कंपलसरी डिलीवरी ना? हाँ, अगर हम उसको अपनी ट्रांजैक्शन को एक्सपायरी वाले दिन सेटलमेंट नहीं करेंगे तो हाँ, हमें वो तो सर सारे ही शेयर है मेरे ख्याल, वो तो सारे ही शेयर है। अगर आप अपनी F&O की ट्रांजैक्शन स्क्वायर अप नहीं करोगे तो कंपलसरी डिलीवरी है सर, कंपलसरी डिलीवरी है। तो आई थिंक आ ही चुका है। आई थिंक सिर्फ जितने भी शेयर्स हैं सिर्फ इंडेक्स ट्रांजैक्शन पे, मान लीजिए आपने निफ्टी खरीद सिर्फ इंडेक्स सेटल नहीं हो सकती है, वहां पे आपको डिफरेंस हमेशा देना पड़ेगा। अदरवाइज स्टॉक्स में तो आपको हमेशा आपको डिलीवरी करनी पड़ेगी, और डिलीवरी आपके पास नहीं है तो शॉर्टेज लगेगी आप पे। शॉर्ट मतलब वो पेनल्टी लगेगी, ऑक्शन पेनल्टी लगेगी अगर आपके पास डिलीवरी नहीं है तो। हाँ, ऑक्शन में लेके फिर डिलीवरी छोड़ी जाएगी मेरे। हाँ, वो डिलीवरी लेके जाएगी ऑक्शन में लेके, तो उसपे काफी मोटी पेनल्टी लग जाती है। तो सर मेरा कहने का मतलब है कोई ऐसा सैक्रोसेंट नहीं है कि F&O की आपकी एक वन ऑफ ट्रांजैक्शन है तो आपको उधर बिजनेस में ही दिखाना है। अब अदर सोर्सेज में जनरली हम कैटेगराइज कर रहे थे, और तरुण सर ने एक नया एरिया दिया कि इसको आप कैपिटल गेन में दिखा दो, तो हाँ गलत नहीं है, ये वाला एरिया भी हम कर सकते हैं एक
अगेन रेगुलर कैपिटल एसेट की तरह ट्रीट कर ही सकते हैं 20% पे। लॉन्ग टर्म तो होगा ही नहीं, शॉर्ट टर्म ही होगा मोस्टली ऐसे केसों में, क्योंकि एक्सपायरी 30 दिन के अंदर अंदर होती है। मैक्सिमम 90 डेज आगे का हम सौदा नहीं डाल सर, सकते हैं। करने को तो सर उसकी भी कर सकते हैं, वो 14 बैंक सिर्फ निफ्टी की आई थिंक आगे कितने सालों की होती है, 2024, 25, 26 की भी हो रही होती है ट्रांजैक्शन। निफ्टी में तो हो जाती है सर, हाँ, इंडेक्स में होती है। हो जाती है। तो हाँ, ये एक अच्छा एरिया दे दिया सर ने रिसर्च करने के लिए। बट देन अगेन ऐसा कोई सैक्रोसेंट नहीं है। अब सर टैक्स ऑडिट में क्या करना है, कंप्यूटेशन ऑफ माय टर्नओवर। स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन में देखिए सर, अब इसको टैक्स ऑडिट के लिए फॉर कैलकुलेटिंग अ टर्नओवर कोई मैकेनिज्म इनकम टैक्स में तो नहीं दिया हुआ, लेकिन हमारे सीए इंस्टीट्यूट ने अपनी गाइडेंस नोट में दिया हुआ है। और दिस turnover criteria has been well read into income tax act by various judicial precedent। तो वो कहते हैं जब आपने अपना कोई ना सर्कुलर निकाल रखा है ना कोई एक्ट में कुछ लिख रखा है, तो जो एक रेगुलेटर है उसने एक तरीका दे रखा है, तो वही इज द राइट वे। आई थिंक इस पे अब शायद किसी हाई कोर्ट की भी जजमेंट आ गई है, आई एम नॉट रॉन्ग। आईटीआईटी की तो काफी सारी थी। तो अगर कोई स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन है, डिफरेंस इज द टर्नओवर, एग्रीगेट ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिफरेंसेस। मान लीजिए इंट्राडे, स्पेकुलेटिव में सबसे पहला आता है इंट्राडे। मान लीजिए मैंने 1000 रुपए का शेयर आज खरीदा और 1100 रुपए का आज ही बेच दिया, मुझे 100 रुपए का बेनिफिट हुआ। कल मैंने एक 800 का शेयर खरीदा और 750 पे बेच दिया, मुझे 50 रुपए का लॉस हुआ। एक दिन मुझे 100 रुपए का मुनाफा हुआ था और अगले दिन मुझे 50 का नुकसान हुआ था। तो मेरा नेट प्रॉफिट इज 50, 100 माइनस 50। लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग टर्नओवर हम ये नेगेटिव को नेगेटिव इग्नोर कर देंगे, तो 100 प्लस 50 नेगेटिव को एब्सोल्यूट करके एग्रीगेट डिफरेंस ऑफ नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स विल बी माय स्पेकुलेटिव का इनकम। अब सर इसमें लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते वक्त एक गलती कर देते हैं, और ये सर आई एम श्योर आउट ऑफ अगेन हम लोग कन्वीनियंस के वक्त, अगर मान लीजिए मैंने 50 शेयरों में इंट्राडे किया, मैं जब एक कॉन्ट्रैक्ट नोट चलाता हूँ तो डिलीवरी का भी और क्या कहते हैं इंट्राडे का एक ही साथ, मैंने 500 रिलायंस के शेयर खरीदे, 300 बेच दिए सेम डे में, 200 की डिलीवरी उठा ली। उसके बाद 400 मान लीजिए एक कोई भी शेयर ले लो, कड़ीला ले लो और 400 बेच दिए, और कोई एक शेयर ले लो एलएनटी, मैंने 600 खरीद लिए जो बेचे नहीं, तो इस हिसाब से मैंने 200 की रिलायंस की डिलीवरी और 600 की कड़ीला सॉरी एलएनटी की डिलीवरी उठाई है। मेरा 300 का रिलायंस का इंट्राडे हुआ था और 300 का मेरा वो कौन सी कंपनी है कड़ीला का इंट्राडे हुआ था, चार कुछ शेयरों का। तो कड़ीला में मान लीजिए मुझे 1000 रुपए प्रॉफिट आता है, रिलायंस में मुझे 300 लॉस आता है, तो मैं इंट्राडे को सेट ऑफ कर देता हूँ। मैं इंट्राडे को 300 और उसके लॉस और प्रॉफिट को सेट ऑफ करके एक जनरल एंट्री में एक जगह लिख देता हूँ। ये हर कोई करता है इंक्लूडिंग हम, तो हाँ हम यहाँ गलत है अगर हम ऐसे कर रहे हैं। अगर आपके क्लाइंट ने 10 या 20 इंट्राडे दे के मारे तो आपको 20 अलग अलग टेक्निकली या तो एंट्रियां करनी चाहिए या उसके अलग अलग लेजर बनाने चाहिए। अब आप कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे इसका सवाल मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि वो स्क्रिप्ट वाइज पूछ रहा है, डे वाइज नहीं पूछ रहा। अगर आपको रिलायंस में 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है और 100 रुपए का कड़ीला में लॉस हुआ है, तो इंट्राडे में हम नेट करके डाल देते हैं। वरना और एक्चुअल में सर ये करना बहुत मुश्किल भी है हमारे लिए अगर मैनुअली चढ़ा रहे हैं। अब इसीलिए सर अब स्टॉक मार्केट वालों के लिए एक स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट नोट से उनकी जनरल एंट्रियां चढ़ा देते हैं। मैंने एक डेमो देखा था एक सॉफ्टवेयर का, तो वहां पे ये थोड़ी सी एक्यूरेसी आ जाती है। अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से, टैक्स पर्सपेक्टिव से आप कोई गलती नहीं कर रहे, बट हाँ टर्नओवर पर्सपेक्टिव से आप गलती कर रहे हैं सिर्फ टर्नओवर कैलकुलेशन के लिए। हम आप ये इंट्राडे की बात कर रहे हैं? जी सर, अगर आपके एक ही कॉन्ट्रैक्ट नोट में 10 इंट्राडे है ना सर, तो जनरली एंट्री चढ़ाते वक्त उसको एक ही में डाल देते हैं। अब टर्नओवर तो दसियों का अलग अलग है ना सर। अगर आपको पता है आपके क्लाइंट का टैक्स ऑडिट है ही है तो आप कर दीजिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ टर्नओवर निकालने का तरीका है। लेकिन अगर कोई बॉर्डर लाइन पे आ रहा था तो शायद वो आ जाता। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। फिर से डेरिवेटिव्स में अगेन फेवरेबल एंड अनफेवरेबल डेरिवेटिव फ्यूचर ऑप्शन में प्लस लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस। एंड ये पॉइंट सर देख रहा हूं ऑलमोस्ट हर आदमी इग्नोर कर देता है, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ ऑप्शन इज आल्सो टू बी इंक्लूडेड। ऑप्शन जो आप सेल करते हो फ्यूचर में तो क्लियर है सर, जो पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस होगा वो,
मान लीजिए मैंने कोई भी ऑप्शन, 1000 रुपए का ऑप्शन, मतलब 1000 रुपए के शेयर में मैंने 100 रुपए का शेयर खरीदा और वो एक्सपायरी में वहां तक पहुंचा ही नहीं, तो ऑप्शन गल जाएगा मेरा, तो मेरा ऑप्शन की सेल वैल्यू 0 होगी, तो मेरा 100 रुपीज का नुकसान हुआ, तो वो तो 100 हो गया। लेकिन मान लीजिए मैंने ऑप्शन सेल किया, मान लीजिए वो शेयर का रेट भाग जाता और मुझे 300 रुपए ऑप्शन सेलिंग पे देने पड़ते, तो वो 300 रुपए प्राइस एट विच ऑप्शन वाज सोल्ड इज आल्सो टू बी इंक्लूडेड। डुप्लीकेशन हो रही है सर, डुप्लीकेशन हो रही है। अगर मान लीजिए मैंने रिलायंस का 100 रुपए का 2400 की 2500 की कॉल 100 रुपए में बेची है, तो 100 रुपए की मैंने मेरी सेल वैल्यू हो गई, ये तो पहले टर्नओवर का में ऐड होगी। अब रिलायंस मान लीजिए 2300 पे बंद हो गया, तो मेरी ये कॉल तो मेरे को 100 रुपीज का मुनाफा हो जाएगा, तो ये 100 रुपीज विल बी माई फेवरेबल डिफरेंस, जो कि फिर से ऐड होगा, 200 रुपए मेरा टर्नओवर बन जाएगा सेम ट्रांजैक्शन में। जब जब दो बार ऐड होगा प्राइस और परचेज प्राइस से ज्यादा होगी, आपकी डुप्लीकेशन होगी। पारस, ये 2 बार ऐड हो जाएगा? वही तो बता रहा हूँ, पहले तो ऐड होगा डिफरेंस पे, प्रॉफिट लॉस पे, फिर ऑप्शन सेल पे। जब भी आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं आप डबल एक्सपोजर ले रहे हैं। अगर आप मुनाफे में ऑप्शन सेलिंग में, तो आपका टर्नओवर 2 बारी में है, और ऑप्शन परचेज में आप नुकसान में है तो भी आपका 2 बारी है। ये सर ये चीज होनी नहीं चाहिए, ये गलत है, बट है तो है सर। अब इंस्टीट्यूट ही रिवाइज करेगा और तो कोई कर नहीं सकता। आई एम श्योर तरुण सर, आकाश जी थोड़ी ज्यादा सुनी जाती है, आई एम श्योर। आई थिंक इस पे मैं थोड़ा डिफर करता हूँ। शायद मेरे को जो लगता है कि जो आपने कहा प्रीमियम रिसीव्ड ऑन सेल ऑन ऑप्शंस को इंक्लूड करेंगे टर्नओवर में, ये सिर्फ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में करेंगे एज ऑन 31 मार्च, क्योंकि वो सेटल नहीं होंगे। बाकी सारा तो फेवरेबल और अनफेवरेबल के डिफरेंस पे ही टर्नओवर निकलेगा। सर ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, इसमें एक पॉइंट ऐड नहीं किया गया, एक पॉइंट लेस नहीं किया गया। चलिए मैं आज रिसर्च करूंगा इस पे। नहीं, और सर जीरोधा वाला इकलौता ब्रोकर है जो जीरोधा, जो कि मुझे पूरा टर्नओवर निकाल के देता है, तो वो ऑप्शन सेल को अलग से ऐड करके देता है, सारे ऑप्शन से। अच्छा, क्लाइंट हमारे हैं उनका मैं देखता हूँ, तो वो जीरोधा वाला टर्नओवर बड़ा अच्छे तरीके से निकाल के देता है। क्योंकि मेरी आज तक यही अंडरस्टैंडिंग थी कि 31 मार्च को जो अनएक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट रह गए हैं, सिर्फ उसका प्रीमियम ऑन सेल हम ऐड करते हैं टर्नओवर के लिए। नहीं सर ये कह रहा है। और रिवर्स ट्रेड में भी डिफरेंस को ऐड करते हैं। अगेन सर रिवर्स ट्रेड यहीं पे कवर हो जाता है, तो आई डोंट थिंक लिखने की नीड थी, बट देन लिख दिया तो फिर मैंने बता भी दिया। अगेन आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं थोड़ा सा बिकॉज ऑफ पॉसिटिव ऑफ टाइम में थोड़ा तेज चलूंगा। हमने मेजर सारा कवर कर लिया। अच्छा, डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन में वैल्यू ऑफ शेयर सेल सिंपल है, इसमें तो सेल की वैल्यू। फिर अगेन वो कहता है कि वेयर एनी शेयर्स आर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, हमने प्रॉफिट कैपिटल गेन में दिखाया, पैरा 5.15 सीधा कहता है सच ट्रांजैक्शन इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। और ये तो सर टर्नओवर और सेल्स की बात करता था। और एक ग्रॉस रिसीट भी क्राइटेरिया होता है 44AB में, वहां पे भी इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स विल आल्सो नॉट बी कंसिडर्ड एज माय टर्नओवर। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट से मेरे को जो भी टर्नओवर होगा will not become part of my turnover for the purpose of tax audit. Basically जो मुझे बिजनेस प्रोफेशन में टैक्स होगा सिर्फ वही अमाउंट मेरा कंसिडर किया जाएगा। अब इसके बाद सर जैसे हमने पहले एक छोटा सा मैं पॉइंट बताना चाहूंगा, ICDS में शेयरों की जो वैल्यूएशन होती है, अगेन तरुण सर इस पे एक्सपर्ट है। कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट सेटल्ड ऑन बैलेंस शीट डेट, दैट इज ऑन माय एक्सपायरी डेट, should be marked to market and gain and loss should be recognized in P&L. हम उसका P&L में gain loss recognize कर लेते हैं, लेकिन ICDS के अकॉर्डिंगली M2M लॉस भी recognize नहीं कर सकते और M2M प्रॉफिट भी recognize नहीं कर सकते। एक सर्कुलर है इस पे। तो आपकी टू दिस एक्सटेंट अगर आपका कोई क्लाइंट है जिसकी आप F&O की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, 31 मार्च का खड़ा सौदा जो भी होगा जिसपे आपको कोई गेन आ रहा होगा या जा रहा होगा, वो आप प्लीज रिवर्स कीजिएगा। और ये अपने आप में बहुत कम्बरसम प्रोसेस है, बट हाँ हमें करना पड़ता है, स्पेशली फॉर द वंस हु हैव वेरी ह्यूज एक्सपोजर ऑन 31 मार्च। हमें पता है सर हमारे कभी कभी 4 से 5 दिन सिर्फ इस कैलकुलेशन को निकालने में चले जाते हैं, वो भी जब मैं या मेरे फादर जो खुद सीए हैं लगते हैं तब। अगेन सर ये कुछ पॉइंट्स हैं, हम जनरली अपने क्लाइंटों की जिनके शेयरों का ज्यादा काम है, जो सिर्फ उसमें डील कर रहे हैं, उनके 2 पोर्टफोलियोज अगर रखने होते हैं तो हम इस तरीके का पॉइंट ला देते हैं।
Equity shares or securities which are to be held for a period more than so and so days are categorized as investment and valued at cost. या are held for a period not exceeding कितना are categorized as inventories and are valued at lower of cost and NRV. ये हमने अप्रोच फॉलो करी हुई है. ऐसा नहीं है कि हर किसी को करनी है, बट एक हमारे क्लाइंट ने एक सिस्टम सिंपल रखा हुआ है, 15 दिन से कम, 15 दिन से ज्यादा, या 30 डेज, या आप जो भी दिन रखना चाहे. एक केस लॉ मेरे पास है 45 डेज. 45 डेज में केस लॉ ने खुद कह दिया था कि क्लाइंट का ये क्राइटेरिया, ये अगेन ये मैंने कुछ केस लॉस से ही पॉइंट बनाए थे अपने क्लाइंटों के केस में जिनका सिर्फ काम ही स्टॉक ब्रोकिंग का है. तो आप इस टाइप का पॉइंट रख सकते हैं ताकि कैरेक्टराइजेशन पे एओ अगर आए तो उसको पहले ही पता चल जाए कि हमारी ये इंटेंशन है. फिर सर मैंने कुछ मॉडल पॉइंट्स ऑफ ये डिलीवरी के रखे हैं, मैं अपनी पीपीटी शेयर कर दूंगा, इसमें पढ़ लीजिएगा. नोट्स टू अकाउंट में हम क्या जनरली डालते हैं वो लिख देते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज तो बनानी होती है ना. म्यूचुअल फंड में सर कुछ नहीं है, सिंपल है. अगर कोई, ये यूलिट लिख दिया गया, पी होना चाहिए था. अगर कोई म्यूचुअल फंड है या कोई यूलिप है विच इज नॉट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010D, मतलब अनएग्जेम्प्ट यूलिप, जो एग्जेम्प्ट होती है उसकी बात नहीं कर रही, सिर्फ अनएग्जेम्प्ट यूलिप, अगर उसने अपना 75% से ज्यादा लिस्टेड इक्विटी शेयर में लगा रखा है तो वो इक्विटी ओरिएंटेड फंड में है, या उसने 90% से ज्यादा किसी और फंड में लगा रखा है और उस और आगे वाले फंड ने 90% से ज्यादा शेयर्स में लगा रखा है तो वो इक्विटी ओरिएंटेड फंड है. तो मोटा मोटी हम जनरली देखते हैं 75% से ज्यादा अगर मेरे प्रोसीड्स आर इन्वेस्टेड इन इक्विटी शेयर्स तो इक्विटी ओरिएंटेड फंड है या नहीं. वैसे भी ये काम हमारे को देखना नहीं होता, म्यूचुअल फंड वाला खुद ही हमें बता देता है कि मैं इक्विटी ओरिएंटेड हूँ कि मैं डेट ओरिएंटेड हूँ या अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड. मैं सिर्फ 2 टाइप के म्यूचुअल फंड्स बता रहा था. इसका रीजन ये है क्योंकि जो इक्विटी ओरिएंटेड फंड है उसमें कैपिटल गेन के लिए इफ दे आर नॉट, 1 साल क्राइटेरिया है, 1 साल से छोटा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और 1 साल से बड़ा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, उसकी टैक्सेशन शॉर्ट टर्म 15% पे होगी, लॉन्ग टर्म 10% पे होगी एज पर 112A. 31 जनवरी का जो आपको ग्रैंडफादरिंग थी वो आपको 31 जनवरी 2018 की वो भी मिलेगी आपको. बिल्कुल इक्विटी शेयर की तरह चलता है इक्विटी ओरिएंटेड फंड. और जो नॉन इक्विटी ओरिएंटेड फंड है उसमें 3 साल है. आई वुड लाइक टू हेयर हाईलाइट कि इक्विटी शेयर्स जो अनलिस्टेड थे उनके केस में 2 कर दिया गया है, लेकिन नॉन इक्विटी ओरिएंटेड फंड में आज भी 3 साल है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए. शॉर्ट टर्म आपकी स्लैब रेट पे टैक्स होगा, लॉन्ग टर्म 20% पे टैक्स होगा. आई थिंक इसमें उसका भी बेनिफिट मिल जाता है 10% 112 का, अगर उससे ऊपर जा रहा हो. और उसके बाद आपके स्लैब रेट डिविडेंड जो है दोनों के केसों में आई थिंक डिविडेंड जो है दोनों के केस में एग्जेम्पशन विड्रॉ कर दी गई है. नाउ इट्स टैक्सेबल एज योर इनकम. कमिंग टू कमोडिटी ट्रांजैक्शन, मैंने स्लाइड में सिर्फ इतना सा लिखा है कि कमोडिटी ट्रेड, ये जो एक हमने 43(5) पढ़ा था which dealt with speculative transaction, उसका क्लॉज ई ये कहता है eligible transaction on a recognized stock exchange for commodity derivative is also not a speculative. तो अगर आप commodity transaction करते हैं eligible sorry recognized stock exchange में, commodity की कई सारी exchange है जो unrecognized है, तो it will not be considered as speculative. और अगर वो unrecognized exchange में तो वो speculative होगा. मैंने वो आगे अपनी स्लाइड में लिखी है कौन कौन सी रिकॉग्नाइज है कौन कौन सी नहीं. रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज ये है सर हमारी. सर कमोडिटी में आप मान के चलिए, कमोडिटी में ऑलमोस्ट F&O की तरह अकाउंटिंग भी हो रही है, टैक्सेशन भी हो रही है, सब कुछ टैक्स ऑडिट वगैरह F&O की तरह ही हम लेके चल रहे हैं. अगर वो रिकॉग्नाइज जैसे आप उनका करते वैसे आपको इनका करना. अब आते हैं क्रिप्टो करेंसी. सर ये एक नया कंसेप्ट है. बैठे बैठे 4-5-6 साल बाद पहले मुझे भी आइडिया, 3-4 साल पहले मुझे भी पता चला कोई बिटकॉइन जैसी चीज आई है, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो काफी पैसे बन जाते हैं. वो अलग बात है, हमने गंवाए हैं लेकिन लोगों ने तो कमाए हैं. व्हाट इज अ क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी इज अ डिजिटल असेट, इज अ डिजिटल करेंसी क्रिएटेड to serve as a medium of exchange and uses cryptography to secure financial transaction. Sir, cryptography, I'm sure तुषार जी इसमें थोड़े ज्यादा एक्सपर्ट होंगे ये टर्मिनोलॉजीज में. क्रिप्टोग्राफी, हैश, क्रिप्टोग्राफी के थ्रू कैसे ट्रांजैक्शन ब्लॉक हो जाती है नहीं होती. बट आप मान के चलिए अगर हम आपको आज हम, क्योंकि टैक्सेशन इज आवर टॉपिक एंड नॉट व्हाट इज अ क्रिप्टो करेंसी, तो मैं एक मोटा मोटा मान के चलता हूँ. एक
ऑनलाइन टोकन है, डिजिटल टोकन है विच कैरीज अ वैल्यू, और वो वैल्यू डिटरमिन हो रही है व्हेन इट इज बीइंग ट्रेडेड ऑन ऑन क्रिप्टो स्टॉक एक्सचेंजेस। कोई रेगुलेटेड नहीं है, हर मैं देख रहा हूँ प्लेटफॉर्म अपनी अलग बना के बैठा हुआ है, बट कुछ यूएस की बड़ी स्टॉक एक्सचेंजेस है जो प्राइसेस रेप्लिकेट कर रहे हैं वर्ल्ड ओवर में। इंडिया में मुझे बताता है कोई, क्योंकि मैं बिटकॉइंस में बहुत ज्यादा घुसा हुआ नहीं हूँ, इंडिया में थोड़ा बिटकॉइन एक्सपेंसिव होता है बिकॉज उनके प्राइसेस यूएस से आते हैं, और यूएस में अगर प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं तो ग्लोबली प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं, बिकॉज द लार्जेस्ट एक्सचेंज इज इन यूएस। और पता नहीं शायद रशिया भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सॉरी रशिया कह रहा हूँ, जापान भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज बिटकॉइन बनाने वाला एक जापानीज था, और किसी को सतोशी सर करके उसका कोई नेम है, और वो बना के चला गया, किसी को आज तक वो बंदा ही नहीं पता, उसका क्रिएटर भी कौन है क्या नहीं है, नोबडी नोज। छोड़िए सर, हमारा आज का टॉपिक है टैक्सेशन ऑफ बिटकॉइन। नाउ क्रिप्टो करेंसी इज अ डिजिटल टोकन। मेरे हाथ में सिक्का नहीं आएगा, अगर 5 रुपए का मेरे पास सिक्का होता तो मेरे पास मिलता है मुझे, बट क्रिप्टो करेंसी इज अ डिजिटल टोकन। My records are there in online ledger which is being maintained, and I have read that these are unalterable. आपका स्टॉक एक्सचेंज हैक हो सकता है लेकिन क्रिप्टो के रिकॉर्ड्स हैक नहीं हो सकते, बिकॉज इट यूजेस मिलिट्री ग्रेड एन्क्रिप्शन। तो अब सबसे पहला सवाल मेरे पास उठता है, whether this cryptocurrency is a capital asset or not. Capital asset means property of any kind held by an SSC, whether or not connected with the business. Property of any kind. तो क्या क्रिप्टो करेंसी एक मेरी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है क्या? दिस इज ऑल्सो माई कैपिटल एसेट। सर अगेन इसमें बहुत डिवाइडेड ओपिनियन है कि क्या क्रिप्टो करेंसी कैपिटल एसेट है या नहीं है, बट एक जो मैंने अपनी रिसर्च में पाया कि मोस्ट ऑफ द टैक्स प्रोफेशनल्स आर विलिंग टू कॉल इट अ कैपिटल एसेट, saying that this is also my intangible asset which has a value. क्रिप्टो करेंसी को भी एक कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में ले आए, तो अब क्रिप्टो करेंसी की जो मैं ट्रेड करूंगा तो उसपे मुझे कुछ गेन होगा कुछ लॉस होगा। गेन होगा या लॉस होगा, अगेन मैं उन पे अगेन नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आऊंगा तो वो पता चल जाए, उस पे मैं डिस्कस करूंगा। तो इस पे फिर वही ट्रांजैक्शन लग जाएगी, क्रिप्टो करेंसी के में ट्रेड इज अ बिजनेस इनकम और अ कैपिटल गेन इनकम। वही मैंने जितने सारे आपको टेस्ट बताए थे, whether again there is a huge quantum, substantial time, my intention, वो सारी की सारी चीजें एज इट इज क्रिप्टो करेंसी पे भी रेप्लिकेट हो जाती है जो इक्विटी शेयर पे थे। इफ आई एम डूइंग इट एज एन एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड और कॉमर्स, इट विल बी अ बिजनेस एंड आई हैव टू शो दोस क्रिप्टोज एज माय स्टॉक इन ट्रेड। बट इफ आई डू इट वन ऑफ, एक ट्रांजैक्शन कर लिया, एक बेच दिया, एक खरीद लिया, इस टाइप से कर लिया, देन इट विल बी कैपिटल गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेदर दिस इज स्पेक्युलेटिव, बिकॉज मेरे को डिलीवरी तो आई नहीं। सर इस पे जो मैंने रिसर्च किया मुझे ये पता चला कि क्रिप्टो करेंसी में जो डिलीवरी होती है, व्हेन यू बाय अ क्रिप्टो करेंसी इट कम्स इन योर वॉलेट एंड व्हेन यू सेल इट इट गोज आउट ऑफ योर वॉलेट, एंड अनलेस एंड अंटिल यू हैव नॉट रिसीव्ड इट इन योर वॉलेट यू कांट सेल इट। तो इसमें स्पेकुलेशन नहीं हो सकती, विदाउट एक्चुअल डिलीवरी काम नहीं हो सकता। एक डिजिटल ट्रांजैक्शन है, आपके डिजिटल वॉलेट में वो आ जाता है और उसको आने के बाद ही वो बिकता है। तो स्पेकुलेटिव इनकम क्रिप्टो करेंसीज में नहीं बन सकती अगर आप क्रिप्टो करेंसी को एक कैपिटल एसेट मान रहे हो। अब कोई ये कहे जी सब कुछ ही हवा में है, कुछ आता नहीं कुछ जाता नहीं, ऑनलाइन ही कहीं आ जाए तो ऑनलाइन ही कहीं जाता है, विच इज द अप्रोच ऑफ अ टैक्स ऑफिसर। तो हाँ वो स्पेकुलेटिव में लेकर आएगा, बट व्हेन वील हैव टू एजुकेट हिम दैट आई हैव अ वॉलेट and this transaction enters my wallet, and this coin, this digital currency enters my wallet, and this currency goes out my wallet, just like I have a demat account and a share enters my demat account and goes outside my demat account। मेरे हाथ में कुछ नहीं आता, सिर्फ डीमेट की स्टेटमेंट में लिखा रहता है कि मैं रिलायंस के आज 10,000 शेयर ओन करता हूँ। वैसी मेरी क्रिप्टो करेंसी की जो मेरी रेगुलेटर है, जो भी मैं जिनके पास अपना अकाउंट खुलाता हूँ, उनकी होल्डिंग स्टेटमेंट में लिखा रहता है कि मेरे पास इतने बिटकॉइन है, इतने इथीरियम है। तो अगर आप इसको स्पेकुलेटिव मानते हो तो उसको भी स्पेकुलेटिव मान के सारी डीमेट ट्रांजैक्शंस को वो कर दीजिए। तो अगेन we'll have to explain it if somebody takes this far-fetched view and calls everything speculative. I am told अब कुछ क्रिप्टो एक्सचेंजेस शॉर्टिंग भी अलाउ कर चुकी है। अगर if that's the case कि बिना डिलीवरी के आपको शॉर्टिंग करने दे रहे हैं
तो हो सकता है स्पेकुलेटिव का कंसेप्ट भी इसमें रीड कर लिया जाए, बट देन अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द केस। इसमें ना पारस जी आर्बिट्रेज भी होती है, एक एक्सचेंज और दूसरे एक्सचेंज के रेट में बहुत फर्क होता है, तो आर्बिट्रेज ट्रांजैक्शन स्पेकुलेटिव में आ जाती है। सर अगेन हाँ जी, कह सकते हो इधर से बेच के उधर बेच दिया, बट सर अगर डिलीवरी लग गई तो क्या दिक्कत है? मेरे वॉलेट में डिलीवरी लग गई तो फिर तो स्पेकुलेटिव नहीं रहेगी ना जी। बट इवन शेयर्स में भी अगर हम बहुत ज्यादा आर्बिट्रेजिंग करते हैं तो वो स्पेकुलेटिव में ले जाते हैं। सर शेयर्स में बहुत ज्यादा आर्बिट्रेजिंग करता हूं मैं, अगेन दो अलग अलग चीजें हैं सर। मैं बीएससी से खरीद के एनएससी में बेचता हूँ, तो सर मेरी डिलीवरियां लगती थी कुछ टाइम पहले तक, अब नहीं लगती, एक अलग बात है। हमेशा अगर मैं मान लीजिए बीएससी से खरीद रहा हूँ और एनएससी में बेच रहा हूँ और मैंने कुछ प्रॉफिट कमा लिया, साल 2 साल पहले तक तो डिलीवरी लगती थी, तो ये एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन थी। अगर मैं इसको बिजनेस इनकम में उसकी तरीके से ले, अगर मैं इसको कैपिटल गेन के दायरे में लेके जाता हूँ, कैपिटल देखिए सर पहले मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं आर्बिट्राज कमा रहा हूँ तो ये कैपिटल गेन के दायरे में तो आएगा नहीं, बिजनेस के दायरे में आएगा। दिस इज एन एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड और कॉमर्स। स्पेकुलेटिव है या नहीं है, मैं डिलीवरी के हिसाब से देखता हूँ। अगर मैं कोई कहीं पे बेच रहा हूँ और मेरे पास मान लीजिए 10,000 शेयर रिलायंस के थे और मैंने एनएससी में उसको बेच दिए 10,000 रुपए, मान लीजिए 2405 रुपए में, और बीएससी में उसी समय रेट था 2404 और बीएससी में 2404 खरीद लिए, तो मेरे खाते से 10,000 शेयर की डिलीवरी लगती है एनएससी में और 24,000 डिलीवरी मेरे पास आते बीएससी में, बाद में मेरे डीमेट में आ जाते। लेकिन आज की डेट में मैं देख रहा हूँ दोनों एक्सचेंजों की सेटलमेंट साइमल्टेनियस हो रही है। अगर मैं एनएससी में 10,000 बेचता हूँ और बीएससी में 5,000 खरीद रहा हूँ या 10,000 खरीद रहा हूँ, तो मेरे पास नेट शेयर आ रहे हैं, दोनों की एक्सचेंज की सेटलमेंट साथ में लग रही है। कितने टाइम से हो रही है मुझे नहीं पता, बट मैं पिछले 6 महीने से जानता हूँ, क्योंकि मेरे पिछली 6-8 महीने से ही मैंने अपने पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट में इसको देखा था। तो सर अगर आर्बिट्राज में, मैं अगेन वापस आपको वहीं पे लेकर आता हूँ, अगर डिलीवरी लग रही है एक जगह जाने की और दूसरी जगह आने की, तो इट विल नॉट बी स्पेकुलेटिव, बिकॉज स्पेकुलेटिव इज नॉट कि आपने हवा में पैसे कमा लिए। स्पेकुलेटिव की डेफिनेशन है इट इज सेटल्ड अदरवाइज देन बाय एक्चुअली डिलीवरी। लोगों को लगता है स्पेकुलेशन करके हवाबाजी में पैसा, स्पेकुलेशन का मतलब है इट इज सेटल्ड अदरवाइज देन बाय एक्चुअल डिलीवरी। अगर डिलीवरी लग गई, चाहे क्रिप्टो में लगे, चाहे एनएससी बीएससी में डीमेट में लगे, चाहे 1 सेकंड का ही फर्क हो, इट विल नॉट बी स्पेकुलेटिव। दैट्स माय सबमिशन। उसके बाद टैक्सेबल इवेंट्स बिटकॉइन क्रिप्टो में क्या हो सकते हैं सर? एक तो सेल, मेरे पास 10,000 बिटकॉइन पड़े थे, मैंने उनको, मान लीजिए मुझे बिटकॉइन का आज का रेट तो पता नहीं, 10,000 बिटकॉइन मेरे पास होते तो शायद सर मैं बिलियनर मल्टी बिलियनर होता, बट मान लीजिए मेरे पास एक बिटकॉइन है जो कि आज की डेट में आई थिंक 40-50 लाख रुपए का चलता है। मैंने वो बेच दिया बिटकॉइन, मान लीजिए 55 लाख में बेच दिया, तो जब मैं सेल करूंगा एट दैट पॉइंट मुझे टैक्स लगेगा। अब क्या होता है क्रिप्टो में, ये चीज बड़ी कॉमन है, मैंने अपने वॉलेट में बिटकॉइन खरीद के रखे, बिटकॉइन 50 लाख का था। अच्छा बिटकॉइन का तो सर क्या है कि बिटकॉइन का ना आप हिस्सा भी बेच सकते हो, यू डोंट हैव टू सेल वन बिटकॉइन अगेन, बिकॉज आई एम श्योर नॉट ऑल प्रोफेशनल्स आर अवेयर हाउ क्रिप्टोज वर्क। तो आप बिटकॉइन का एक छोटा सा हिस्सा भी बेच सकते हो, 10,000 रुपए का हिस्सा भी बेच सकते हो उस 50 लाख का। तो मैं 10,000वां हिस्सा बेच रहा हूँ बिटकॉइन का। अब मेरे को बिटकॉइन की जगह मुझे इथीरियम लेने हैं, बट इथीरियम लेने के लिए मैं बिटकॉइन दे रहा हूं। तो जब मैंने ये एक्सचेंज ऑफ असेट हुई, एक्सचेंज इथीरियम खरीदा और बिटकॉइन बेचा, तो जो एक्सचेंज के केस में भी जो मेरा असेट बीइंग सोल्ड है उसमें मुझे कैपिटल गेन या बिजनेस इनकम या जो भी हमारी रेलेवेंट इनकम होगी मुझे देना पड़ेगा। दैट विल ऑल्सो बिकम वन टैक्सेबल इवेंट ऑफ माइन। तीसरा, आज की डेट में वी हैव सीन मेनी ऑर्गेनाइजेशंस हैव स्टार्टेड रिसीविंग क्रिप्टो करेंसीज इन बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब ये सबसे बड़ा ग्रे एरिया है कि अगर मैं मान लीजिए आज मैंने बोल दिया कि साहब मेरी कंसल्टिंग की फीस, रिटर्न फाइलिंग फीस इज 50,000 रुपीज, बट आप चाहो तो मुझे बिटकॉइन में भी पे कर सकते हो, तो उस केस में मैंने कुछ बिटकॉइन एक्वायर करे। अब इस बिटकॉइन की मैं क्या ट्रीटमेंट दिखाऊंगा, वेदर आई विल शो इट एज एन इन्वेस्टमेंट, वेदर आई विल शो इट एज अ स्टॉक इन ट्रेड। बहुत डाइसी है सर बोलना, इफ आई एम रिसीविंग माय फीस इन अ क्रिप्टो करेंसी, तो मैंने एक तरह से
एक्सचेंज ऑफ सर्विस को मैंने कर लिया विद अ क्रिप्टो करेंसी। अब जो मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं ऑनलाइन, बट देन अगेन विच इज सब्जेक्ट टू करेक्शन, जब आप बिजनेस में क्रिप्टो करेंसीज को, और जो मेरा पर्सनल व्यू भी है, जब आप बिजनेस में क्रिप्टो करेंसीज को इंडल्ज कर लेते हो, इंक्लूड कर लेते हो, तो any cryptocurrency that you now acquire by selling your services or selling your good will also be another good of yours and will be shown as a stock in trade. अब मैंने 50,000 रुपए की सर्विस दे दी और उसके बदले बिटकॉइन ले लिए, तो साहब मैं ये नहीं कह सकता ये बिटकॉइन मेरी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि मैं रेगुलरली कर रहा हूं, मैं रेगुलरली इथीरियम ले रहा हूं अपनी सर्विस देने के लिए। दिस इज अ मोड ऑफ पेमेंट, तो उसको मैं स्टॉक इन ट्रेड में दिखाऊंगा। सब अगर आज एक डेफिनेशन में अमेंडमेंट हो जाए कि बिटकॉइन इज आल्सो मनी, तो बात ही खत्म हो जाएगी, तो बात ही खत्म हो जाएगी। उसको मैं करेंसी में दिखाने लग जाऊंगा। अभी डिजिटल करेंसी को ना कोई प्रॉपर मतलब रिकॉग्निशन नहीं मिली। अगर वो डिजिटल करेंसी को मैं मनी दिखा के मैं उसको करंट एसेट में वैल्यू करने लग जाता, करंट एसेट में डालता रहता, या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में डालता रहता, जो कि हमें करना भी चाहिए, बट क्योंकि अभी तक कोई डिजिटल एसेट को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की मान्यता एटलीस्ट गवर्नमेंट लेवल पे नहीं मिली, तो मैं आपको एटलीस्ट अपने इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव से ये कहूंगा, आप अपनी बुक्स में जो मर्जी ट्रीटमेंट दीजिए, कि आप जो भी बिटकॉइन इस तरीके से ले रहे हो उसको आप अपनी स्टॉक इन ट्रेड दिखा लीजिए। क्लोजिंग वैल्यू में अगर कुछ बढ़ता है घटता है तो वो आप अगेन आईसीडीएस के तरीके से या एक स्टॉक के तरीके से उस पर M2M लॉस या M2M प्रॉफिट दीजिए। और जब अगेन वो क्रिप्टो करेंसी को कभी तो आप कन्वर्ट कराओगे ना। आज मेरे पास एक बिटकॉइन आ गया अपनी सर्विस देने के लिए, तो जब मैं उसको कन्वर्ट कराऊंगा तो जो मेरे को उसमें गेन या गेन लॉस आएगा, 50,000 की सर्विस पे मुझे 50,000 का बिटकॉइन मिला, और जब मैं कन्वर्ट कराने गया तो वो 51 का हो गया, तो 1,000 रुपए का मुझे प्रॉफिट भी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और लॉस भी। अब इसमें सर अगर स्टॉक इन ट्रेड दिखा दिया तो सेल ऑफ बिटकॉइन 51,000 दिखाना पड़ेगा, तो टर्नओवर में भी मेरे काउंट हो जाएगा। ग्रे एरिया है सर, ये इंटरप्रिटेशन है, कोई इस पे मतलब जूरिस क्या कहते हैं, कोई इस पे कोई अभी तक कोई जूरिस्प्रूडेंस नहीं है, इस पे कोई इंटरनेशनल प्रेसिडेंट्स मेरी नॉलेज में तो नहीं है एटलीस्ट। तीसरा सर बिटकॉइन की माइनिंग, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर प्रोफेशनल्स, ये बिटकॉइन सर माइन किया जाता है। ये जो हम कोयले की माइनिंग और ये सारी माइनिंग कहते हैं, ऐसे बिटकॉइन की भी माइनिंग होती है। आप गूगल कीजिए माइनिंग फार्म्स, शायद कोल इंडिया का इतना बड़ा फार्म नहीं होगा जितना बिटकॉइन का माइनिंग फार्म है। इतनी हेवी कंप्यूटिंग पावर चाहिए, इतनी हेवी कंप्यूटिंग पावर चाहिए बिटकॉइन माइनिंग में। आपको कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस, कॉम्प्लेक्स पजल जो कुछ होती है उनको आपको सॉल्व करना होता है, तो आपको एक बहुत छोटा सा बिटकॉइन मिलता है। तो इतनी कॉम्प्लेक्स क्या कहते हैं, लोगों ने इतने बड़े बड़े 50-50 हजार स्क्वायर फीट, 50,000 यार्ड में, एकड़ों में, आप देखेंगे चाइना में, यूएस में बड़े बड़े फार्म्स बने हुए हैं जहां पे हजारों कंप्यूटर्स को कंबाइन करा हुआ है, अटैच किया हुआ है, ताकि उनकी कंप्यूटिंग पावर बढ़ जाए और बिटकॉइन की जो माइनिंग हो सके उनसे। अब जब बिटकॉइन में, अभी तो मैं कंप्यूटर पे वो जो भी जैसे भी माइन होता है, अगेन आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन, आई एम अ टैक्स गाय, तो वो माइनिंग के लिए मैं कंप्यूटर पे वो पजल सॉल्व करे जा रहा हूँ, या वो भी रिडल्स या जो भी कहते हैं उनको, उनकी टेक्निकल जार्गन्स में मैं वो एल्गोरिदम, कर रहा हूँ। हाँ जी, एल्गोरिदम, एल्गोरिदम सर, एल्गोरिदम इज द राइट वर्ड। वो टेक्निकल एल्गोरिदम में सॉल्व करे जा रहा हूँ, उसको सॉल्व करने का मुझे एकदम से एक बिटकॉइन मिल जाता है। एक बिटकॉइन नहीं है सर, मैं बिटकॉइन तो 50 लाख का होता है, इसका बहुत छोटा सा हिस्सा मिलता है मुझे, बट मैं एक बारी को मान लेता हूँ मुझे एक पूरा बिटकॉइन मिल गया। तो क्या रिसीविंग दिस अमाउंट, क्या रिसीविंग दिस बिटकॉइन इज ऑल्सो माई इनकम? इसको जब बेचने जाऊंगा तब तो मुझे इनकम होगी। 50 लाख का मुझे बिटकॉइन मिल गया एकदम से, और मैं उसको बेचता हूँ 51 लाख पे, तो 1 लाख तो 51 लाख जब मैं बेचता हूँ तब इनकम जो होगी तब तो समझ में आता है, क्या ये जो मुझे बिटकॉइन मिला, क्या ये इज ऑल्सो माई इनकम? द आंसर इन माई बिलीव इज यस। द मोमेंट आप माइन कर लेते हो एक बिटकॉइन या जो भी, जितनी भी आपको उसके करस्पॉन्डिंग उस समय की फेयर वैल्यू थी, दैट अमाउंट शुड बी योर इनकम। अब मान लीजिए 50 लाख रुपए की वैल्यू थी उस समय, तो 50 लाख को आप अपनी इनकम डे 1 पे दिखाएंगे। जब आप इसको बेचोगे 51 लाख का, तो आप सिर्फ 1 लाख टैक्स दिखाएंगे, और अगर आप इसको 49 लाख का बेचोगे तो आप 1 लाख लॉस दिखाएंगे।
50 लाख ऑफ इनकम पहले दिखा चुके होंगे। इस पे एक कॉन्ट्ररी ओपिनियन भी है कि माइनिंग सिंप्लिसिटर विल नॉट रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ इनकम। अगर आप उसको 51 का बेचोगे तो 51 की इनकम दिखाना, और 49 का बेचोगे तो 49 की। बट मेरा पर्टिकुलर ओपिनियन है कि जब आप वो एल्गोरिथम सॉल्व करते हो और एकदम से आपके हाथ में एक असेट आता है जिसकी एक रियलाइजेबल वैल्यू 50 लाख रुपीस, आपने कुछ मेहनत करी, उस मेहनत की आपको एक तरह से फीस मिल गई है, जो भी उस मेहनत की तरफ का आपको एक कॉम्पनसेशन मिल गया, वो बिटकॉइन। तो आपको उस समय whenever that coin is mined, you will have to tax it as your income. And जब आप उसको बेचोगे या उसको आगे एक्सचेंज करोगे तो जो भी डिफरेंशियल होगा उसका आपको लॉस या प्रॉफिट दिखेगा। और ऐसे केसों में शोइंग इट माइनर्स के लिए आई बिलीव कैपिटल गेन में बिटकॉइन दिखाना इज वर्चुअली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग सब्सटेंशियल टाइम इन दिस माइनिंग। माइनिंग मतलब कोयले की माइन करने से आसान नहीं है, जो मैंने पढ़ा है, लगे रहते हैं लोग तब जाके एक बिटकॉइन माइन होता है उनसे। तो दे विल हैव टू शो दिस एज देयर स्टॉक इन ट्रेड, या जैसे भी उसको करना है। मतलब दिस इज माय ओपिनियन, दिस इज माय ओपिनियन एंड सब्जेक्ट टू करेक्शंस, subject to corrections. This is a very gray area. I just tried to throw my interpretation of this entire thing in light of various articles that have been shared by international tax advisors who are doing it more than us. I think sir इसके साथ मैंने अपने जो मेरा ब्रीफ था वो सारा कवर कर लिया है। इसके बाद आई थिंक अगर किसी को कोई डाउट है, और मैंने शायद थोड़ा टाइम जरूर एक्सीड किया है, बट अगर किसी को कोई डाउट है तो आई एम श्योर दे कैन आस्क।